ٹوٹل بجٹ 15 کروڑ یعنی باکس آفس 60 کروڑ یعنی ابھی بہت زیادہ یہ منافع پر چل رہی ہے کیونکہ یہ بہت ہی اچھی مووی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ۔ ویلکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ایک ایسی مووی کے بارے میں جس کا نام ہے چنائی لو سٹوری۔ یہ ساؤتھ انڈین کی بیسٹ مووی ہے جس میں محبت، جذبات بھی ہے، رشتوں میں زندگی کے اتار چڑھاؤ کے ایک سادہ لیکن دلچسپ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ فلم کی کہانی ایک ایسے نوجوان کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی میں محبت کی تلاش میں ہے۔ حالات ایسے ہی ایک ایسی لڑکی سے ملاتے ہیں جو بظاہر ان سے کافی مختلف نظر آتی ہے۔ شروع میں دونوں کے درمیان اختلافات اور چھوٹی چھوٹی نوک چوک دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہی تعلق محبت میں بدلنے لگتا ہے۔ فلم کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ محبت کو صرف رومانس تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ کرداروں کے جذبات، ان کے خواب، ان کے مستقبل کے فیصلوں کو بھی کہانی کا حصہ بنایا گیا ہے۔ دونوں مرکزی کردار ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رشتوں کے راستے میں کئی مشکلات اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتے ناظرین کو احساس ہوتا ہے کہ سچی محبت صرف ایک دوسرے کے قریب آنے کا نام نہیں، بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور قربانی دینے کا نام بھی ہے۔ مرکزی کرداروں کی اداکاری فلم کا اہم حصہ ہے۔ دونوں اداکاروں نے اپنے کرداروں کے جذبات کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ خاص طور پر جذباتی منظر بھی اداکاری زیادہ نمایاں محسوس ہوتے ہیں، جبکہ رومانوی سینس میں دونوں کی کیمسٹری کہانی کو مزید دلچسپ بناتی ہے۔ فلم میں کامیڈی اور ہلکے پھلکے لمحات بھی شامل ہیں جو سنجیدہ اور جذباتی منظر کے درمیان ایک اچھا توازن پیدا کرتے ہیں۔ کچھ سین ناظرین کو مسکرانے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ کچھ لمحات جذباتی بھی کر دیتے ہیں۔ میوزک اور بیک گراؤنڈ سکور کی بات کی جائے تو یہ فلم کے رومانوی ماحول کو مزید خوبصورت بناتے ہیں۔ خاص طور پر محبت سے تعلق منظر میں میوزک جذبات کو نمایاں کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن ضرور میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں۔ بعض مقامات پر کہانی کی رفتار تھوڑی محسوس ہوتی ہے اور کچھ واقعات کافی انداز رفت لگنے کے قابل ہیں۔ اگر اسکرپٹ کی مزید مضبوط اور کچھ کرداروں کو مزید گہرائی دی جاتی تو فلم کا اثر بہتر ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود فلم ان لوگوں کے لیے ایک اچھی تفریح ثابت ہو سکتی ہے جو سادہ رومانی کہانیاں، جذباتی منظر اور محبت پر مبنی فلمیں پسند کرتے ہیں۔ ہمیں یہ پیغام دے دے کہ محبت چینا لو سٹوری خوبصورت لمحات کا نام نہیں، بلکہ اعتماد، سمجھداری اور ایک دوسرے کے احساسات کو قدر کرنے کا بھی نام بھی ہے۔ مجموعی طور پر ایک ہلکی پھلکی جذباتی رومانوی فلم کے جس میں محبت کے ساتھ ساتھ رشتوں کی پیچیدگیوں کو بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میری طرف سے اس کو 10 میں سے 7 نمبر ملیں گے۔ اگر آپ چینل لو سٹوری دیکھیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو فلم کی اداکاری اور دو رومانوی سینس کیسے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بارے میں بات کرنے والے اس کے ڈائریکٹر کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے روی نبوری، جو اس مووی کے ڈائریکٹر ہیں۔ اگر دوستوں اس کے رائٹر کی بات کی جائے وہ ہے سی رجیش، جو اس مووی کے رائٹر ہے جس نے اس مووی کو لکھا ہے۔ اگر دوستوں اس کے پروڈیوسر پر بات کی جائے وہ ہے سری ونیشا کمار ندو اینڈ دا سی رجیش۔ اگر دوستوں اس کے سٹارنگ کون ہے وہ ہے کرن ابھیرام اینڈ دا سری گوری پیا، جو اس مووی کے سٹارنگ ہیں۔ جو کاسٹ پر بات کرتے ہیں وہ یہ دونوں ہیں ہیرو ہیں۔ اگر دوستوں اس کے میوزک پر بات کی جائے وہ ہے مانی شرما، جو اس مووی کے میوزک پر گانے گاتا ہے۔ اگر دوستوں اس کے ریلیز ڈیٹ پر بات کی جائے وہ ہے 24 جولائی 2026 کو یہ مووی ریلیز ہو چکی ہے۔ اگر دوستوں اس کے رننگ ٹائم کی بات کی جائے 179 منٹ کے ٹوٹل مووی ہے۔ کنٹری کی بات کی جائے وہ ہے انڈیا۔ اگر دوستوں اس کے لینگویج پر بات کی جائے اس مووی کو کس زبان میں بنایا گیا ہے، لینگویج میں بنایا، اس مووی کو تلنگو میں بنایا گیا ہے، تو اس مووی کا ٹوٹل بجٹ 15 کروڑ یعنی باکس آفس 60 کروڑ یعنی ابھی بہت زیادہ یہ منافع پر چل رہی ہے کیونکہ یہ بہت ہی اچھی مووی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ۔ ویلکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ایک ایسی مووی کے بارے میں جس کا نام ہے چنائی لو سٹوری۔
یہ ساؤتھ انڈین کی بیسٹ مووی ہے جس میں محبت، جذبات بھی ہے، رشتوں میں زندگی کے اتار چڑھاؤ کے ایک سادہ لیکن دلچسپ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ فلم کی کہانی ایک ایسے نوجوان کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی میں محبت کی تلاش میں ہے۔ حالات ایسے ہی ایک ایسی لڑکی سے ملاتے ہیں جو بظاہر ان سے کافی مختلف نظر آتی ہے۔ شروع میں دونوں کے درمیان اختلافات اور چھوٹی چھوٹی نوک چوک دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہی تعلق محبت میں بدلنے لگتا ہے۔ فلم کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ محبت کو صرف رومانس تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ کرداروں کے جذبات، ان کے خواب، ان کے مستقبل کے فیصلوں کو بھی کہانی کا حصہ بنایا گیا ہے۔ دونوں مرکزی کردار ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رشتوں کے راستے میں کئی مشکلات اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتے ناظرین کو احساس ہوتا ہے کہ سچی محبت صرف ایک دوسرے کے قریب آنے کا نام نہیں، بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور قربانی دینے کا نام بھی ہے۔ مرکزی کرداروں کی اداکاری فلم کا اہم حصہ ہے۔ دونوں اداکاروں نے اپنے کرداروں کے جذبات کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ خاص طور پر جذباتی منظر بھی اداکاری زیادہ نمایاں محسوس ہوتے ہیں، جبکہ رومانوی سینس میں دونوں کی کیمسٹری کہانی کو مزید دلچسپ بناتی ہے۔ فلم میں کامیڈی اور ہلکے پھلکے لمحات بھی شامل ہیں جو سنجیدہ اور جذباتی منظر کے درمیان ایک اچھا توازن پیدا کرتے ہیں۔ کچھ سین ناظرین کو مسکرانے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ کچھ لمحات جذباتی بھی کر دیتے ہیں۔ میوزک اور بیک گراؤنڈ سکور کی بات کی جائے تو یہ فلم کے رومانوی ماحول کو مزید خوبصورت بناتے ہیں۔ خاص طور پر محبت سے تعلق منظر میں میوزک جذبات کو نمایاں کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن زور میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں۔ بعض مقامات پر کہانی کی رفتار تھوڑی محسوس ہوتی ہے اور کچھ واقعات کافی انداز رفت لگنے کے قابل ہیں۔ اگر اسکرپٹ کی مزید مضبوط اور کچھ کرداروں کو مزید گہرائی دی جاتی تو فلم کا اثر بہتر ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود فلم ان لوگوں کے لیے ایک اچھی تفریح ثابت ہو سکتی ہے جو سادہ رومانی کہانیاں، جذباتی منظر اور محبت پر مبنی فلمیں پسند کرتے ہیں۔ ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ محبت چینا لو سٹوری خوبصورت لمحات کا نام نہیں، بلکہ اعتماد، سمجھداری اور ایک دوسرے کے احساسات کو قدر کرنے کا بھی نام بھی ہے۔ مجموعی طور پر ایک ہلکی پھلکی جذباتی رومانوی فلم کے جس میں محبت کے ساتھ ساتھ رشتوں کی پیچیدگیوں کو بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میری طرف سے اس کو میں 10 میں سے 7 نمبر ملیں گے۔ اگر آپ چینیل لیمب سٹوری دیکھیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو فلم کی اداکاری اور رومانوی سینس کیسے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بارے میں بات کرنے والے اس کے ڈائریکٹر کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے روی نبوری، جو اس مووی کے ڈائریکٹر ہیں۔ اگر دوستوں اس کے رائٹر کی بات کی جائے وہ ہے سی رجیش، جو اس مووی کے رائٹر ہے جس نے اس مووی کو لکھا ہے۔ اگر دوستوں اس کے پروڈیوسر پر بات کی جائے وہ ہے سری ونیشا کمار ندھو اینڈ دا سی رجیش۔ اگر دوستوں اس کے سٹارنگ کون ہے وہ ہے کرن ابھیرام اینڈ دا سری گوری پیا، جو اس مووی کے سٹارنگ ہیں۔ جو کاسٹ پر بات کرتے ہیں وہ یہ دونوں ہیں ہیرو ہیں۔ اگر دوستوں اس کے میوزک پر بات کی جائے وہ ہے مانی شرما، جو اس مووی کے میوزک پر گانے گاتا ہے۔ اگر دوستوں اس کے ریلیز ڈیٹ پر بات کی جائے وہ ہے 24 جولائی 2026 کو یہ مووی ریلیز ہو چکی ہے۔ اگر دوستوں اس کے رننگ ٹائم کی بات کی جائے 179 منٹ کے ٹوٹل مووی ہے۔ کنٹری کی بات کی جائے وہ ہے انڈیا۔ اگر دوستوں اس کے لینگویج پر بات کی جائے اس مووی کو کس زبان میں بنایا گیا ہے، لینگویج میں بنایا، اس مووی کو تلنگو میں بنایا گیا ہے، تو اس مووی کا ٹوٹل بجٹ 15 کروڑ یعنی باکس آفس 60 کروڑ، یعنی ابھی بہت زیادہ یہ منافع پر چل رہی ہے کیونکہ یہ بہت ہی اچھی مووی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ۔ ویلکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ایک ایسی مووی کے بارے میں جس کا نام ہے چنائی لو سٹوری۔ یہ ساؤتھ انڈین کی بیسٹ مووی ہے جس میں محبت، جذبات بھی ہے، رشتوں میں زندگی کے اتار چڑھاؤ کے ایک سادہ لیکن دلچسپ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔
فلم کی کہانی ایک ایسے نوجوان کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی میں محبت کی تلاش میں ہے۔ حالات ایسے ہی ایک ایسی لڑکی سے ملاتے ہیں جو بظاہر ان سے کافی مختلف نظر آتی ہے۔ شروع میں دونوں کے درمیان اختلافات اور چھوٹی چھوٹی نوک چوک دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہی تعلق محبت میں بدلنے لگتا ہے۔ فلم کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ محبت کو صرف رومانس تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ کرداروں کے جذبات، ان کے خواب، ان کے مستقبل کے فیصلوں کو بھی کہانی کا حصہ بنایا گیا ہے۔ دونوں مرکزی کردار ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رشتوں کے راستے میں کئی مشکلات اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتے ناظرین کو احساس ہوتا ہے کہ سچی محبت صرف ایک دوسرے کے قریب آنے کا نام نہیں، بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور قربانی دینے کا نام بھی ہے۔ مرکزی کرداروں کی اداکاری فلم کا اہم حصہ ہے۔ دونوں اداکاروں نے اپنی کرداروں کے جذبات کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ خاص طور پر جذباتی منظر بھی اداکاری زیادہ نمایاں محسوس ہوتے ہیں، جبکہ رومانوی سینس میں دونوں کی کیمسٹری کہانی کو مزید دلچسپ بناتی ہے۔ فلم میں کامیڈی اور ہلکے پھلکے لمحات بھی شامل ہیں جو سنجیدہ اور جذباتی منظر کے درمیان ایک اچھا توازن پیدا کرتے ہیں۔ کچھ سین ناظرین کو مسکرانے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ کچھ لمحات جذباتی بھی کر دیتے ہیں۔ میوزک اور بیک گراؤنڈ سکور کی بات کی جائے تو یہ فلم کے رومانوی ماحول کو مزید خوبصورت بناتے ہیں۔ خاص طور پر محبت سے تعلق منظر میں میوزک جذبات کو نمایاں کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن زور میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں۔ بعض مقامات پر کہانی کی رفتار تھوڑی محسوس ہوتی ہے اور کچھ واقعات کافی انداز رفت لگنے کے قابل ہیں۔ اگر اسکرپٹ کی مزید مضبوط اور کچھ کرداروں کو مزید گہرائی دی جاتی تو فلم کا اثر بہتر ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود فلم ان لوگوں کے لیے ایک اچھی تفریح ثابت ہو سکتی ہے جو سادہ رومانی کہانیاں، جذباتی منظر اور محبت پر مبنی فلمیں پسند کرتے ہیں۔ ہمیں یہ پیغام دے دے کہ محبت چینا لو سٹوری خوبصورت لمحات کا نام نہیں، بلکہ اعتماد، سمجھداری اور ایک دوسرے کے احساس کو قدر کرنے کا بھی نام بھی ہے۔ مجموعی طور پر ایک ہلکی پھلکی جذباتی رومانوی فلم کے جس میں محبت کے ساتھ ساتھ رشتوں کی پیچیدگیوں کو بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میری طرف سے اس کو میں 10 میں سے 7 نمبر ملیں گے۔ اگر آپ چینل لیمب سٹوری دیکھیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو فلم کی اداکاری اور رومانوی سینس کیسے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مزید اس کے بارے میں بات کرنے والے اس کے ڈائریکٹر کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے روی نبوری، جو اس مووی کے ڈائریکٹر ہیں۔ اگر دوستوں اس کے رائٹر کی بات کی جائے وہ ہے سی رجیش، جو اس مووی کے رائٹر ہے، جس نے اس مووی کو لکھا ہے۔ اگر دوستوں اس کے پروڈیوسر پر بات کی جائے وہ ہے سری ونیشا کمار ندھو اینڈ دا سی رجیش۔ اگر دوستوں اس کے سٹارنگ کون ہے وہ ہے کرن ابھیرام اینڈ دا سری گوری پیا، جو اس مووی کے سٹارنگ ہیں۔ جو کاسٹ پر بات کرتے ہیں وہ یہ دونوں ہیں ہیرو ہیں۔ اگر دوستوں اس کے میوزک پر بات کی جائے وہ ہے مانی شرما، جو اس مووی کے میوزک پر گانے گاتا ہے۔ اگر دوستوں اس کے ریلیز ڈیٹ پر بات کی جائے وہ ہے 24 جولائی 2026 کو یہ مووی ریلیز ہو چکی ہے۔ اگر دوستوں اس کے رننگ ٹائم کی بات کی جائے 179 منٹ کے ٹوٹل مووی ہے۔ کنٹری کی بات کی جائے وہ ہے انڈیا۔ اگر دوستوں اس کے لینگویج پر بات کی جائے اس مووی کو کس زبان میں بنایا گیا ہے، لینگویج میں بنایا، اس مووی کو تلنگو میں بنایا گیا ہے، تو اس مووی کا ٹوٹل بجٹ 15 کروڑ یعنی باکس آفس 60 کروڑ، یعنی ابھی بہت زیادہ یہ منافع پر چل رہی ہے کیونکہ یہ بہت ہی اچھی مووی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ۔ ویلکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ایک ایسی مووی کے بارے میں جس کا نام ہے چنائی لو سٹوری۔ یہ ساؤتھ انڈین کی بیسٹ مووی ہے جس میں محبت، جذبات بھی ہے، رشتوں میں زندگی کے اتار چڑھاؤ کے ایک سادہ لیکن دلچسپ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ فلم کی کہانی ایک ایسے نوجوان کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی میں محبت کی تلاش میں ہے۔ حالات ایسے ہی ایک ایسی لڑکی سے ملاتے ہیں جو بظاہر ان سے کافی مختلف نظر آتی ہے۔ شروع میں دونوں کے درمیان اختلافات اور چھوٹی چھوٹی نوک چوک دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہی تعلق محبت میں بدلنے لگتا ہے۔ فلم کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ محبت کو صرف رومانس تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ کرداروں کے جذبات، ان کے خواب، ان کے
मुस्तकबिल के फैसलों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है। दोनों मरकजी किरदार एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिश्तों के रास्ते में कई मुश्किलात और गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ते नाज़रीन को एहसास होता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे के करीब आने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने और करीब कुर्बानी देने का नाम भी है। मरकजी किरदारों की अदाकारी फिल्म का अहम हिस्सा है। दोनों अदाकारों ने अपने किरदारों के जज्बात को बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर जज्बाती मंजर भी अदाकारी ज़्यादा नुमाया महसूस होते हैं, जबकि रोमानी सीन्स में दोनों की केमिस्ट्री कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाती है। फिल्म में कॉमेडी और हल्के फुल्के लम्हात भी शामिल है, जो संजीदा और जज्बाती मंजर के दरमियान एक अच्छा तवज़ुन पैदा करते हैं। कुछ सीन नाज़रीन को मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं, जबकि कुछ लम्हात जज्बाती भी कर देते हैं। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो ये फिल्म के रोमानू माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। ख़ास तौर पर मोहब्बत से ताल्लुक़ मंजर में म्यूज़िक जज्बात को नुमाया करने में मदद देता है, लेकिन ज़ोर में कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। बाज़ मकामात पर कहानी की रफ्तार थोड़ी महसूस होती है, और कुछ वाक़यात काफ़ी अंदाज़ रफ्त लगने के काबिल हैं। अगर स्क्रिप्ट की मज़ीद मजबूत और कुछ किरदारों को मज़ीद गहराई दी जाती तो फ़िल्म का असर बेहतर हो सकता था। इसके बावजूद फिल्म इन लोगों के लिए एक अच्छी तफरीह साबित हो सकती है, जो सादा रोमानी कहानियाँ, जज्बाती मंजर और मोहब्बत पर मबनी फिल्में पसंद करते हैं। हमें ये पैगाम दे दे कि मोहब्बत चीना लव स्टोरी खूबसूरत लम्हात का नाम नहीं, बल्कि एतमाद, समझदारी और एक दूसरे के एहसास को एक कदर करने का भी नाम भी है। मजमूई तौर पर एक हल्की फुल्की जज्बाती रोमानी फिल्म के जिसमें मोहब्बत के साथ साथ रिश्तों की पेचीदगियों को भी दिखाने की कोशिश की गई है। मेरी तरफ से इसको मैं 10 में से 7.25 मिलेंगे। अगर आप चीनियल लैम्प स्टोरी देखें तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फ़िल्म की अदाकारी और दो रोमानी सीन्स कैसे लगे, और साथ ही साथ इसके मज़ीद इसके बारे में बात करने वाले इसके डायरेक्टर के बारे में बात की जाए, वो है रवि नबूरी, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। अगर दोस्तों इसके राइटर की बात की जाए, वो है सई रिजेश, जो इस मूवी के राइटर है, जिसने इस मूवी को लिखा है। अगर दोस्तों इसके प्रोड्यूसर पर बात की जाए, वो है सरी विनिशा कुमार नधु एंड द सई राजेश। अगर दोस्तों इसके स्टारिंग कौन है, वो है किरण अभिराम एंड द सरी गोरी पिया, जो इस मूवी के स्टारिंग हैं। जो कास्ट पर बात करते हैं वो ये दोनों हैं हीरो हैं। अगर दोस्तों इसके म्यूज़िक पर बात की जाए, वो है मानी शर्मा, जो इस मूवी के म्यूज़िक पर गाने गाता है। अगर दोस्तों इसके रिलीज डेट पर बात की जाए, वो है 24 जुलाई 2026 को ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। अगर दोस्तों इसके रनिंग टाइम की बात की जाए, 179 मिनट की टोटल मूवी है। कंट्री की बात की जाए, वो है इंडिया। अगर दोस्तों इसके लैंग्वेज पर बात की जाए, इस मूवी को किस ज़बान में बनाया गया है, लैंग्वेज में बनाया, इस मूवी को तेलुगु में बनाया गया है। तो इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़, यानी बॉक्स ऑफिस 60 करोड़, यानी अभी अभी बहुत ज़्यादा ये मुनाफे पर चल रही है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ। वेलकम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है चेन्नई लव स्टोरी। ये साउथ इंडियन की बेस्ट मूवी है, जिसमें मोहब्बत जज्बात भी है, रिश्तों में ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के एक सादा लेकिन दिलचस्प अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे नौजवान के गिर्द घूमती है जो अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की तलाश में है। हालात ऐसे ही है, एक ऐसी लड़की से मिलाते हैं जो बज़ाहिर इनसे काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। शुरू में दोनों के दरमियान इख्तलाफात और छोटी छोटी नोक चोक देखने को मिलती है, लेकिन वक्त के साथ यही ताल्लुक मोहब्बत में बदलने लगता है। फिल्म का खूबसूरत पहलू यह है कि मोहब्बत को सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि किरदारों के जज्बात, उनके ख्वाब, उनके मुस्तकबिल के फैसलों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है। दोनों मरकजी किरदार एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिश्तों के रास्ते में कई मुश्किलात और गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ते नाज़रीन को एहसास होता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे के करीब आने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल
वक्त में एक दूसरे का साथ देने और कड़ी कुर्बानी देने का नाम भी है। मर्कजी किरदारों की अदाकारी फिल्म का अहम हिस्सा है। दोनों अदाकारों ने अपने किरदारों के जज्बात को बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर जज्बाती मंजर भी अदाकारी ज़्यादा नुमाया महसूस होते हैं, जबकि रोमानी सीन्स में दोनों की केमिस्ट्री कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाती है। फिल्म में कॉमेडी और हल्के फुल्के लम्हात भी शामिल है, जो संजीदा और जज्बाती मंजर के दरमियान एक अच्छा तवज़ुन पैदा करते हैं। कुछ सीन नाज़रीन को मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं, जबकि कुछ लम्हात जज्बाती भी कर देते हैं। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो ये फिल्म के रोमानू माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। ख़ास तौर पर मोहब्बत से ताल्लुक़ मंजर में म्यूज़िक जज्बात को नुमाया करने में मदद देता है। लेकिन ज़ोर में कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। बाज़ मकामात पर कहानी की रफ्तार थोड़ी महसूस होती है, और कुछ वाक़यात काफ़ी अंदाज़ रफ्त लगने के काबिल हैं। अगर स्क्रिप्ट की मज़ीद मजबूत और कुछ किरदारों को मज़ीद गहराई दी जाती तो फ़िल्म का असर बेहतर हो सकता था। इसके बावजूद फ़िल्म इन लोगों के लिए एक अच्छी तफरीह साबित हो सकती है, जो सादा रोमानी कहानियाँ, जज्बाती मंज़र और मोहब्बत पर मबनी फ़िल्में पसंद करते हैं। हमें ये पैगाम देते हैं कि मोहब्बत जीना लव स्टोरी खूबसूरत लम्हात का नाम नहीं, बल्कि एतमाद, समझदारी और एक दूसरे के एहसास को एक कदर करने का भी नाम भी है। मजमूई तौर पर एक हल्की फुल्की जज्बाती रोमानी फ़िल्म के जिसमें मोहब्बत के साथ साथ रिश्तों की पेचीदगियों को भी दिखाने की कोशिश की गई है। मेरी तरफ से इसको मैं 10 में से 7.25 मिलेंगे। अगर आप चीनियल लैम्प स्टोरी देखें तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फ़िल्म की अदाकारी और दो रोमानी सीन्स कैसे लगे, और साथ ही साथ इसके मज़ीद इसके बारे में बात करने वाले इसके डायरेक्टर के बारे में बात की जाए, वो है रवि नबूरी, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। अगर दोस्तों इसके राइटर की बात की जाए, वो है सई रिजेश, जो इस मूवी के राइटर है, जिसने इस मूवी को लिखा है। अगर दोस्तों इसके प्रोड्यूसर पर बात की जाए, वो है सरी विनिशा कुमार नधु एंड द सई रंजेश। अगर दोस्तों इसके स्टारिंग कौन है, वो है किरण अभिराम एंड द सरी गोरी पिया, जो इस मूवी के स्टारिंग हैं। जो कास्ट पर बात करते हैं वो ये दोनों हैं हीरो हैं। अगर दोस्तों इसके म्यूज़िक पर बात की जाए, वो है मानी शर्मा, जो इस मूवी के म्यूज़िक पर गाने गाता है। अगर दोस्तों इसके रिलीज डेट पर बात की जाए, वो है 24 जुलाई 2026 को ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। अगर दोस्तों इसके रनिंग टाइम की बात की जाए, 179 मिनट की टोटल मूवी है। कंट्री की बात की जाए, वो है इंडिया। अगर दोस्तों इसके लैंग्वेज पर बात की जाए, इस मूवी को किस ज़बान में बनाया गया है, लैंग्वेज में बनाया, इस मूवी को तेलुगु में बनाया गया है। तो इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़, यानी बॉक्स ऑफिस 60 करोड़, यानी अभी अभी बहुत ज़्यादा ये मुनाफे पर चल रही है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ। वेलकम वीवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है चेन्नई लव स्टोरी। ये साउथ इंडियन की बेस्ट मूवी है, जिसमें मोहब्बत जज्बात भी है, रिश्तों में ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के एक सादा लेकिन दिलचस्प अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे नौजवान के गिर्द घूमती है जो अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की तलाश में है। हालात ऐसे ही है, एक ऐसी लड़की से मिलाते हैं जो बज़ाहिर इनसे काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। शुरू में दोनों के दरमियान इख्तलाफात और छोटी छोटी नोक चोक देखने को मिलती है, लेकिन वक्त के साथ यही ताल्लुक मोहब्बत में बदलने लगता है। फिल्म का खूबसूरत पहलू यह है कि मोहब्बत को सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि किरदारों के जज्बात, उनके ख्वाब, उनके मुस्तकबिल के फैसलों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है। दोनों मरकजी किरदार एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिश्तों के रास्ते में कई मुश्किलात और गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ते नाज़रीन को एहसास होता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे के करीब आने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने और कड़ी कुर्बानी देने का नाम भी है। मर्कजी किरदारों की अदाकारी फिल्म का अहम हिस्सा है। दोनों अदाकारों ने अपने किरदारों के जज्बात को बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर जज्बाती मंजर भी अदाकारी ज़्यादा नुमाया महसूस होते हैं, जबकि रोमानी सीन्स में दोनों की केमिस्ट्री कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाती है। फिल्म में कॉमेडी और हल्के फुल्के लम्हात भी शामिल है, जो संजीदा और जज्बाती मंजर के दरमियान एक अच्छा तवज़ुन पैदा करते हैं।
कुछ सीन नाज़रीन को मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं, जबकि कुछ लम्हात जज्बाती भी कर देते हैं। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो ये फ़िल्म के रोमानू माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। ख़ास तौर पर मोहब्बत से ताल्लुक़ मंज़र में म्यूज़िक जज्बात को नुमायाँ करने में मदद देता है। लेकिन ज़ोर में कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। बाज़ मकामात पर कहानी की रफ्तार थोड़ी महसूस होती है, और कुछ वाक़यात काफ़ी अंदाज़ रफ्त लगने के काबिल हैं। अगर स्क्रिप्ट की मज़ीद मज़बूत और कुछ किरदारों को मज़ीद गहराई दी जाती तो फ़िल्म का असर बेहतर हो सकता था। इसके बावजूद फ़िल्म इन लोगों के लिए एक अच्छी तफरीह साबित हो सकती है, जो सादा लुमानी कहानियाँ, जज्बाती मंज़र और मोहब्बत पर मबनी फ़िल्में पसंद करते हैं। हमें ये पैगाम देते हैं कि मोहब्बत जीना लव स्टोरी खूबसूरत लम्हात का नाम नहीं, बल्कि एतमाद, समझदारी और एक दूसरे के एहसास को एक कदर करने का भी नाम भी है। मजमूई तौर पर एक हल्की फुल्की जज्बाती रोमानी फ़िल्म के जिसमें मोहब्बत के साथ साथ रिश्तों की पेचीदगियों को भी दिखाने की कोशिश की गई है। मेरी तरफ से इसको मैं 10 में से 7.25 नंबर मिलेंगे। अगर आप चीनियल लैम्प स्टोरी देखें तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फ़िल्म की अदाकारी और दो रोमानी सीन्स कैसे लगे, और साथ ही साथ इसके मज़ीद इसके बारे में बात करने वाले इसके डायरेक्टर के बारे में बात की जाए, वो है रवि नबूरी, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। अगर दोस्तों इसके राइटर की बात की जाए, वो है सई रिजेश, जो इस मूवी के राइटर है, जिसने इस मूवी को लिखा है। अगर दोस्तों इसके प्रोड्यूसर पर बात की जाए, वो है सरी विनिशा कुमार नधु एंड द सई राजेश। अगर दोस्तों इसके स्टारिंग कौन है, वो है किरण अभिराम एंड द सरी गोरी पिया, जो इस मूवी के स्टारिंग हैं। जो कास्ट पर बात करते हैं वो ये दोनों हैं हीरो हैं। अगर दोस्तों इसके म्यूज़िक पर बात की जाए, वो है मानी शर्मा, जो इस मूवी के म्यूज़िक पर गाने गाता है। अगर दोस्तों इसके रिलीज डेट पर बात की जाए, वो है 24 जुलाई 2026 को ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। अगर दोस्तों इसकी रनिंग टाइम की बात की जाए, 179 मिनट की टोटल मूवी है। कंट्री की बात की जाए, वो है इंडिया। अगर दोस्तों इसके लैंग्वेज पर बात की जाए, इस मूवी को किस ज़बान में बनाया गया है, लैंग्वेज में बनाया, इस मूवी को तेलुगु में बनाया गया है। तो इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़, यानी बॉक्स ऑफिस 60 करोड़, यानी अभी अभी बहुत ज़्यादा ये मुनाफे पर चल रही है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ। वेलकम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है चेन्नई लव स्टोरी। ये साउथ इंडियन की बेस्ट मूवी है, जिसमें मोहब्बत जज्बात भी है, रिश्तों में ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के एक सादा लेकिन दिलचस्प अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे नौजवान के गिर्द घूमती है जो अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की तलाश में है। हालात ऐसे ही है, एक ऐसी लड़की से मिलाते हैं जो बज़ाहिर इनसे काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। शुरू में दोनों के दरमियान इख्तलाफात और छोटी छोटी नोक चोक देखने को मिलती है, लेकिन वक्त के साथ यही ताल्लुक मोहब्बत में बदलने लगता है। फिल्म का खूबसूरत पहलू यह है कि मोहब्बत को सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि किरदारों के जज्बात, उनके ख्वाब, उनके मुस्तकबिल के फैसलों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है। दोनों मरकजी किरदार एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिश्तों के रास्ते में कई मुश्किलात और गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ते नाज़रीन को एहसास होता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे के करीब आने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने और करीब कुर्बानी देने का नाम भी है। मरकजी किरदारों की अदाकारी फिल्म का अहम हिस्सा है। दोनों अदाकारों ने अपने किरदारों के जज्बात को बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर जज्बाती मंजर भी अदाकारी ज़्यादा नुमाया महसूस होते हैं, जबकि रोमानी सीन्स में दोनों की केमिस्ट्री कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाती है। फिल्म में कॉमेडी और हल्के फुल्के लम्हात भी शामिल है, जो संजीदा और जज्बाती मंजर के दरमियान एक अच्छा तवज़ुन पैदा करते हैं। कुछ सीन नाज़रीन को मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं, जबकि कुछ लम्हात जज्बाती भी कर देते हैं। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो ये फिल्म के रोमानू माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। ख़ास तौर पर मोहब्बत से ताल्लुक़ मंजर में म्यूज़िक जज्बात को नुमाया करने में मदद देता है। लेकिन ज़ोर में कुछ कमियाँ कमज़ोरियाँ भी हैं। बाज़
मकामात पर कहानी की रफ्तार थोड़ी महसूस होती है और कुछ वाक़यात काफ़ी अंदाज़ रफ्त लगने के काबिल हैं। अगर स्क्रिप्ट की मज़ीद मज़बूत और कुछ किरदारों को मज़ीद गहराई दी जाती तो फ़िल्म का असर बेहतर हो सकता था। इसके बावजूद फ़िल्म इन लोगों के लिए एक अच्छी तफरीह साबित हो सकती है जो सादा रोमानी कहानियाँ, जज़्बाती मंज़र और मोहब्बत पर मबनी फ़िल्में पसंद करते हैं। हमें ये पैगाम देते हैं कि मोहब्बत जीना लव स्टोरी खूबसूरत लम्हात का नाम नहीं बल्कि एतमाद, समझदारी और एक दूसरे के एहसास को एक कदर करने का भी नाम भी है। मजमूई तौर पर एक हल्की फुल्की जज्बाती रोमानी फ़िल्म के जिसमें मोहब्बत के साथ साथ रिश्तों की पेचीदगियों को भी दिखाने की कोशिश की गई है। मेरी तरफ से इसको मैं 10 में से 7.25 नंबर मिलेंगे। अगर आप चीनियल लैम्प स्टोरी देखें तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फ़िल्म की अदाकारी और दो रोमानी सीन्स कैसे लगे, और साथ ही साथ इसके मज़ीद इसके बारे में बात करने वाले इसके डायरेक्टर के बारे में बात की जाए वो है रवि नबूरी जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। अगर दोस्तों इसके राइटर की बात की जाए वो है सई रिजेश जो इस मूवी के राइटर है जिसने इस मूवी को लिखा है। अगर दोस्तों इसके प्रोड्यूसर पर बात की जाए वो है सरी विनिशा कुमार नधु एंड द सई राजेश। अगर दोस्तों इसके स्टारिंग कौन है वो है किरण अभिराम एंड द सरी गोरी पिया जो इस मूवी के स्टारिंग हैं। जो कास्ट पर बात करते हैं वो ये दोनों हैं हीरो हैं। अगर दोस्तों इसके म्यूज़िक पर बात की जाए वो है मानी शर्मा जो इस मूवी के म्यूज़िक पर गाने गाता है। अगर दोस्तों इसके रिलीज डेट पर बात की जाए वो है 24 जुलाई 2026 को ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। अगर दोस्तों इसकी रनिंग टाइम की बात की जाए 179 मिनट की टोटल मूवी है। कंट्री की बात की जाए वो है इंडिया। अगर दोस्तों इसके लैंग्वेज पर बात की जाए इस मूवी को किस ज़बान में बनाया गया है, लैंग्वेज में बनाया इस मूवी को तेलुगु में बनाया गया है। तो इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़ यानी बॉक्स ऑफिस 60 करोड़ यानी अभी अभी बहुत ज़्यादा ये मुनाफे पर चल रही है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ। वेलकम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है चेन्नई लव स्टोरी। ये साउथ इंडियन की बेस्ट मूवी है जिसमें मोहब्बत जज्बात भी है, रिश्तों में ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के एक सादा लेकिन दिलचस्प अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे नौजवान के गिर्द घूमती है जो अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की तलाश में है। हालात ऐसे ही है एक ऐसी लड़की से मिलाते हैं जो बज़ाहिर इनसे काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। शुरू में दोनों के दरमियान इख्तलाफात और छोटी छोटी नोक चोक देखने को मिलती है लेकिन वक्त के साथ यही ताल्लुक मोहब्बत में बदलने लगता है। फिल्म का खूबसूरत पहलू यह है कि मोहब्बत को सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं रखा गया बल्कि किरदारों के जज्बात, उनके ख्वाब, उनके मुस्तकबिल के फैसलों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है। दोनों मरकजी किरदार एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन रिश्तों के रास्ते में कई मुश्किलात और गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ते नाज़रीन को एहसास होता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे के करीब आने का नाम नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने और करीब कुर्बानी देने का नाम भी है। मरकजी किरदारों की अदाकारी फिल्म का अहम हिस्सा है। दोनों अदाकारों ने अपने किरदारों के जज्बात को बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर जज्बाती मंजर भी अदाकारी ज़्यादा नुमाया महसूस होते हैं जबकि रोमानी सीन्स में दोनों की केमिस्ट्री कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाती है। फिल्म में कॉमेडी और हल्के फुल्के लम्हात भी शामिल है जो संजीदा और जज्बाती मंजर के दरमियान एक अच्छा तवज़ुन पैदा करते हैं। कुछ सीन नाज़रीन को मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं जबकि कुछ लम्हात जज्बाती भी कर देते हैं। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो ये फिल्म के रोमानू माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। ख़ास तौर पर मोहब्बत से ताल्लुक़ मंजर में म्यूज़िक जज्बात को नुमाया करने में मदद देता है लेकिन ज़ोर में कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। बाज़ मकामात पर कहानी की रफ्तार थोड़ी महसूस होती है और कुछ वाक़यात काफ़ी अंदाज़ रफ्त लगने के काबिल हैं। अगर स्क्रिप्ट की मज़ीद मज़बूत और कुछ किरदारों को मज़ीद गहराई दी जाती तो फ़िल्म का असर बेहतर हो सकता था।
اس کے باوجود فلم ان لوگوں کے لیے ایک اچھی تفریح ثابت ہو سکتی ہے جو سادہ لمحانی کہانیاں، جذباتی منظر اور محبت پر مبنی فلمیں پسند کرتے ہیں۔ ہمیں یہ پیغام دیتے کہ محبت جینا لو سٹوری خوبصورت لمحات کا نام نہیں بلکہ اعتماد، سمجھداری اور ایک دوسرے کے احساسات کو قدر کرنے کا بھی نام بھی ہے۔ مجموعی طور پر ایک ہلکی پھلکی جذباتی رومانی فلم کے جس میں محبت کے ساتھ ساتھ رشتوں کی پیچیدگیوں کو بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میری طرف سے اس کو میں 10 میں سے 7 نمبر ملیں گے۔ اگر آپ چینیل لیمب سٹوری دیکھیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو فلم کی اداکاری اور رومانس سینز کیسے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بارے میں بات کرنے والے اس کے ڈائریکٹر کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے روی نبوری، جو اس مووی کے ڈائریکٹر ہیں۔ اگر دوستوں اس کے رائٹر کی بات کی جائے وہ ہے سی رجیش، جو اس مووی کے رائٹر ہے جس نے اس مووی کو لکھا ہے۔ اگر دوستوں اس کے پروڈیوسر پر بات کی جائے وہ ہے سری ونیشا کمار ندو اینڈ دا سی رجیش۔ اگر دوستوں اس کے سٹارنگ کون ہے وہ ہے کرن ابھیرام اینڈ دا سری گوری پیا، جو اس مووی کے سٹارنگ ہیں۔ جو کاسٹ پر بات کرتے ہیں وہ یہ دونوں ہیں ہیرو ہیں۔ اگر دوستوں اس کے میوزک پر بات کی جائے وہ ہے مانی شرما، جو اس مووی کے میوزک پر گانے گاتا ہے۔ اگر دوستوں اس کے ریلیز ڈیٹ پر بات کی جائے وہ ہے 24 جولائی 2026 کو یہ مووی ریلیز ہو چکی ہے۔ اگر دوستوں اس کے رننگ ٹائم کی بات کی جائے 179 منٹ کے ٹوٹل مووی ہے۔ کنٹری کی بات کی جائے وہ ہے انڈیا۔ اگر دوستوں اس کے لینگویج پر بات کی جائے اس مووی کو کس زبان میں بنایا گیا ہے، لینگویج میں بنایا اس مووی کو تلنگو میں بنایا گیا ہے، تو اس مووی کا ٹوٹل بجٹ 15 کروڑ یعنی باکس آفس 60 کروڑ، یعنی ابھی بہت زیادہ یہ منافع پر چل رہی ہے کیونکہ یہ بہت ہی اچھی مووی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ۔ ویلکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ایک ایسی مووی کے بارے میں جس کا نام ہے چنائی لو سٹوری۔ یہ ساؤتھ انڈین کی بیسٹ مووی ہے جس میں محبت، جذبات بھی ہے، رشتوں میں زندگی کے اتار چڑھاؤ کے ایک سادہ لیکن دلچسپ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ فلم کی کہانی ایک ایسے نوجوان کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی میں محبت کی تلاش میں ہے۔ حالات ایسے ہی ایک ایسی لڑکی سے ملاتے ہیں جو بظاہر ان سے کافی مختلف نظر آتی ہے۔ شروع میں دونوں کے درمیان اختلافات اور چھوٹی چھوٹی نوک چوک دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہی تعلق محبت میں بدلنے لگتا ہے۔ فلم کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ محبت کو صرف رومانس تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ کرداروں کے جذبات، ان کے خواب، ان کے مستقبل کے فیصلوں کو بھی کہانی کا حصہ بنایا گیا ہے۔ دونوں مرکزی کردار ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رشتوں کے راستے میں کئی مشکلات اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتے ناظرین کو احساس ہوتا ہے کہ سچی محبت صرف ایک دوسرے کے قریب آنے کا نام نہیں بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور قربانی دینے کا نام بھی ہے۔ مرکزی کرداروں کی اداکاری فلم کا اہم حصہ ہے۔ دونوں اداکاروں نے اپنے کرداروں کے جذبات کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ خاص طور پر جذباتی منظر بھی اداکاری زیادہ نمایاں محسوس ہوتے ہیں، جبکہ رومانی سینز میں دونوں کی کیمسٹری کہانی کو مزید دلچسپ بناتی ہے۔ فلم میں کامیڈی اور ہلکے پھلکے لمحات بھی شامل ہیں جو سنجیدہ اور جذباتی منظر کے درمیان ایک اچھا توازن پیدا کرتے ہیں۔ کچھ سین ناظرین کو مسکرانے پر مجبور کرتے ہیں جبکہ کچھ لمحات جذباتی بھی کر دیتے ہیں۔ میوزک اور بیک گراؤنڈ سکور کی بات کی جائے تو یہ فلم کے رومانوی ماحول کو مزید خوبصورت بناتے ہیں۔ خاص طور پر محبت سے تعلق منظر میں میوزک جذبات کو نمایاں کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن ضرور میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں۔ بعض مقامات پر کہانی کی رفتار تھوڑی محسوس ہوتی ہے اور کچھ واقعات کافی انداز رفت لگنے کے قابل ہیں۔ اگر اسکرپٹ کی مزید مضبوط اور کچھ کرداروں کو مزید گہرائی دی جاتی تو فلم کا اثر بہتر ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود فلم ان لوگوں کے لیے ایک اچھی تفریح ثابت ہو سکتی ہے جو سادہ لمحانی کہانیاں، جذباتی منظر اور محبت پر مبنی فلمیں پسند کرتے ہیں۔ ہمیں یہ پیغام دیتے کہ محبت جینا لو سٹوری خوبصورت لمحات کا نام نہیں بلکہ اعتماد، سمجھداری اور ایک دوسرے کے احساسات کو قدر کرنے بھی چاہیے۔
कदर करने का भी नाम भी है। मजमूई तौर पर एक हल्की फुल्की जज्बाती रोमानी फिल्म के जिसमें मोहब्बत के साथ साथ रिश्तों की पेचीदगी को भी दिखाने की कोशिश की गई है। मेरी तरफ से इसको मैं 10 में से 7.25 मिलेंगे। अगर आप चीनियल लैम स्टोरी देखें तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फ़िल्म की अदाकारी और दो रोमानी सीन्स कैसे लगे, और साथ ही साथ इसके मज़ीद इसके बारे में बात करने वाले इसके डायरेक्टर के बारे में बात की जाए वो है रवि नबूरी, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। अगर दोस्तों इसके राइटर की बात की जाए वो है सई रिजेश, जो इस मूवी के राइटर है जिसने इस मूवी को लिखा है। अगर दोस्तों इसके प्रोड्यूसर पर बात की जाए वो है सरी विनिशा कुमार नधु एंड द सई राजेश। अगर दोस्तों इसके स्टारिंग कौन है वो है किरण अभिराम एंड द सरी गोरी पिया, जो इस मूवी के स्टारिंग हैं। जो कास्ट पर बात करते हैं वो ये दोनों हैं हीरो हैं। अगर दोस्तों इसके म्यूज़िक पर बात की जाए वो है मानी शर्मा, जो इस मूवी के म्यूज़िक पर गाने गाता है। अगर दोस्तों इसके रिलीज डेट पर बात की जाए वो है 24 जुलाई 2026 को ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। अगर दोस्तों इसके रनिंग टाइम की बात की जाए 179 मिनट के टोटल मूवी है। कंट्री की बात की जाए वो है इंडिया। अगर दोस्तों इसके लैंग्वेज पर बात की जाए इस मूवी को किस ज़बान में बनाया गया है, लैंग्वेज में बनाया, इस मूवी को तेलुगु में बनाया गया है। तो इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़ यानी बॉक्स ऑफिस 60 करोड़, यानी अभी अभी बहुत ज़्यादा ये मुनाफे पर चल रही है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ। वेलकम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है चेन्नई लव स्टोरी। ये साउथ इंडियन की बेस्ट मूवी है जिसमें मोहब्बत जज्बात भी है, रिश्तों में ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के एक सादा लेकिन दिलचस्प अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे नौजवान के गिर्द घूमती है जो अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की तलाश में है। हालात ऐसे ही है एक ऐसी लड़की से मिलाते हैं जो बज़ाहिर इनसे काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। शुरू में दोनों के दरमियान इख्तलाफात और छोटी छोटी नोक चोक देखने को मिलती है, लेकिन वक्त के साथ यही ताल्लुक मोहब्बत में बदलने लगता है। फिल्म का खूबसूरत पहलू यह है कि मोहब्बत को सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि किरदारों के जज्बात, उनके ख्वाब, उनके मुस्तकबिल के फैसलों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है। दोनों मरकजी किरदार एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिश्तों के रास्ते में कई मुश्किलात और गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ते नाज़रीन को एहसास होता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे के करीब आने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने और करीब कुर्बानी देने का नाम भी है। मरकजी किरदारों की अदाकारी फिल्म का अहम हिस्सा है। दोनों अदाकारों ने अपने किरदारों के जज्बात को बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर जज्बाती मंजर भी अदाकारी ज़्यादा नुमाया महसूस होते हैं, जबकि रोमानी सीन्स में दोनों की केमिस्ट्री कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाती है। फिल्म में कॉमेडी और हल्के फुल्के लम्हात भी शामिल है जो संजीदा और जज्बाती मंजर के दरमियान एक अच्छा तवज़ुन पैदा करते हैं। कुछ सीन नाज़रीन को मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं, जबकि कुछ लम्हात जज्बाती भी कर देते हैं। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो ये फिल्म के रोमानू माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। ख़ास तौर पर मोहब्बत से ताल्लुक़ मंजर में म्यूज़िक जज्बात को नुमाया करने में मदद देता है, लेकिन ज़ोर में कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। बाज़ मकामात पर कहानी की रफ्तार थोड़ी महसूस होती है और कुछ वाक़यात काफ़ी अंदाज़ रफ्त लगने के काबिल। अगर स्क्रिप्ट की मज़ीद मजबूत और कुछ किरदारों को मज़ीद गहराई दी जाती तो फ़िल्म का असर बेहतर हो सकता था। इसके बावजूद फिल्म इन लोगों के लिए एक अच्छी तफरीह साबित हो सकती है जो सादा लुमानी कहानी, जज्बाती मंजर और मोहब्बत पर मबनी फिल्में पसंद करते हैं। हमें ये पैगाम दे दे कि मोहब्बत चीना लव स्टोरी खूबसूरत लम्हात का नाम नहीं, बल्कि एतमाद, समझदारी और एक दूसरे के एहसास को एक कदर करने भी चाहिए, कदर करने का भी नाम भी है। मजमूई तौर पर एक हल्की फुल्की जज्बाती रोमानी फिल्म के जिसमें मोहब्बत के साथ साथ रिश्तों की पेचीदगी को भी दिखाने की कोशिश की गई है। मेरी तरफ से इसको मैं 10 में से 7.25 मिलेंगे। अगर आप चीनियल लैम स्टोरी देखें तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फ़िल्म की अदाकारी और दो रोमानी सीन्स कैसे लगे, और साथ ही साथ इसके मज़ीद इसके बारे में बात करने वाले इसके डायरेक्टर के बारे में बात की जाए वो है रवि नबू
नबूरी जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। अगर दोस्तों इसके राइटर की बात की जाए वो है सई रिजेश जो इस मूवी के राइटर है जिसने इस मूवी को लिखा है। अगर दोस्तों इसके प्रोड्यूसर पर बात की जाए वो है सरी विनिशा कुमार नधु एंड द सई रंजेश। अगर दोस्तों इसके स्टारिंग कौन है वो है किरण अभिराम एंड द सरी गोरी पिया जो इस मूवी के स्टारिंग हैं। जो कास्ट पर बात करते हैं वो ये दोनों हैं हीरो हैं। अगर दोस्तों इसके म्यूज़िक पर बात की जाए वो है मानी शर्मा जो इस मूवी के म्यूज़िक पर गाने गाता है। अगर दोस्तों इसके रिलीज डेट पर बात की जाए वो है 24 जुलाई 2026 को ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। अगर दोस्तों इसके रनिंग टाइम की बात की जाए 179 मिनट के टोटल मूवी है। कंट्री की बात की जाए वो है इंडिया। अगर दोस्तों इसके लैंग्वेज पर बात की जाए इस मूवी को किस ज़बान में बनाया गया है, लैंग्वेज में बनाया इस मूवी को तेलुगु में बनाया गया है। तो इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़ यानी बॉक्स ऑफिस 60 करोड़ यानी अभी अभी बहुत ज़्यादा ये मुनाफे पर चल रही है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ। वेलकम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है चेन्नई लव स्टोरी। ये साउथ इंडियन की बेस्ट मूवी है जिसमें मोहब्बत जज्बात भी है, रिश्तों में ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के एक सादा लेकिन दिलचस्प अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे नौजवान के गिर्द घूमती है जो अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की तलाश में है। हालात ऐसे ही है एक ऐसी लड़की से मिलाते हैं जो बज़ाहिर इनसे काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। शुरू में दोनों के दरमियान इख्तलाफात और छोटी छोटी नोक चोक देखने को मिलती है लेकिन वक्त के साथ यही ताल्लुक मोहब्बत में बदलने लगता है। फिल्म का खूबसूरत पहलू यह है कि मोहब्बत को सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं रखा गया बल्कि किरदारों के जज्बात, उनके ख्वाब, उनके मुस्तकबिल के फैसलों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है। दोनों मरकजी किरदार एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन रिश्तों के रास्ते में कई मुश्किलात और गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ते नाज़रीन को एहसास होता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे के करीब आने का नाम नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने और करीब कुर्बानी देने का नाम भी है। मरकजी किरदारों की अदाकारी फिल्म का अहम हिस्सा है। दोनों अदाकारों ने अपने किरदारों के जज्बात को बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर जज्बाती मंजर भी अदाकारी ज़्यादा नुमाया महसूस होते हैं जबकि रोमानी सीन्स में दोनों की केमिस्ट्री कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाती है। फिल्म में कॉमेडी और हल्के फुल्के लम्हात भी शामिल है जो संजीदा और जज्बाती मंजर के दरमियान एक अच्छा तवज़ुन पैदा करते हैं। कुछ सीन नाज़रीन को मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं जबकि कुछ लम्हात जज्बाती भी कर देते हैं। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो ये फिल्म के रोमानू माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। ख़ास तौर पर मोहब्बत से ताल्लुक़ मंजर में म्यूज़िक जज्बात को नुमाया करने में मदद देता है लेकिन ज़ोर में कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। बाज़ मकामात पर कहानी की रफ्तार थोड़ी महसूस होती है और कुछ वाक़यात काफ़ी अंदाज रफ्त लगने के काबिल। अगर स्क्रिप्ट की मज़ीद मजबूत और कुछ किरदारों को मज़ीद गहराई दी जाती तो फिल्म का असर बेहतर हो सकता था। इसके बावजूद फिल्म इन लोगों के लिए एक अच्छी तफरीह साबित हो सकती है जो सादा लुमानी कहानी, जज्बाती मंजर और मोहब्बत पर मबनी फिल्में पसंद करते हैं। हमें ये पैगाम दे दे कि मोहब्बत चीना लव स्टोरी खूबसूरत लम्हात का नाम नहीं बल्कि एतमाद, समझदारी और एक दूसरे के एहसास को एक कदर करने का भी नाम भी है। मजमूई तौर पर एक हल्की फुल्की जज्बाती रोमानी फिल्म के जिसमें मोहब्बत के साथ साथ रिश्तों की पेचीदगी को भी दिखाने की कोशिश की गई है। मेरी तरफ से इसको मैं 10 में से 7.25 मिलेंगे। अगर आप चीनियल लैम स्टोरी देखें तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फिल्म की अदाकारी और दो रोमानी सीन्स कैसे लगे और साथ ही साथ इसके मज़ीद इसके बारे में बात करने वाले इसके डायरेक्टर के बारे में बात की जाए वो है रवि नबूरी जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। अगर दोस्तों इसके राइटर की बात की जाए वो है सई रिजेश जो इस मूवी के राइटर है जिसने इस मूवी को लिखा है। अगर दोस्तों इसके प्रोड्यूसर पर बात की जाए वो है सरी विनिशा कुमार नधु एंड द सई रंजेश। अगर दोस्तों इसके स्टारिंग कौन है वो है किरण
अभिराम एंड सरी गोरी पिया जो इस मूवी के स्टारिंग हैं। जो कास्ट पर बात करते हैं वो ये दोनों हैं हीरो हैं। अगर दोस्तों इसके म्यूज़िक पर बात की जाए वो है मानी शर्मा जो इस मूवी के म्यूज़िक पर गाने गाता है। अगर दोस्तों इसके रिलीज डेट पर बात की जाए वो है 24 जुलाई 2026 को ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। अगर दोस्तों इसके रनिंग टाइम की बात की जाए 179 मिनट की टोटल मूवी है। कंट्री की बात की जाए वो है इंडिया। अगर दोस्तों इसके लैंग्वेज पर बात की जाए इस मूवी को किस ज़बान में बनाया गया है, लैंग्वेज में बनाया इस मूवी को तेलुगु में बनाया गया है। तो इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़ यानी बॉक्स ऑफिस 60 करोड़ यानी अभी अभी बहुत ज़्यादा ये मुनाफे पर चल रही है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ। वेलकम वीवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है चेन्नई लव स्टोरी। ये साउथ इंडियन की बेस्ट मूवी है जिसमें मोहब्बत जज्बात भी है, रिश्तों में ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के एक सादा लेकिन दिलचस्प अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे नौजवान के गिर्द घूमती है जो अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की तलाश में है। हालात ऐसे ही है एक ऐसी लड़की से मिलाते हैं जो बज़ाहिर इनसे काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। शुरू में दोनों के दरमियान इख्तलाफात और छोटी छोटी नोक चोक देखने को मिलती है, लेकिन वक्त के साथ यही ताल्लुक मोहब्बत में बदलने लगता है। फिल्म का खूबसूरत पहलू यह है कि मोहब्बत को सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं रखा गया बल्कि किरदारों के जज्बात, उनके ख्वाब, उनके मुस्तकबिल के फैसलों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है। दोनों मरकजी किरदार एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिश्तों के रास्ते में कई मुश्किलात और गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ते नाज़रीन को एहसास होता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे के करीब आने का नाम नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने और करी कुर्बानी देने का नाम भी है। मरकजी किरदारों की अदाकारी फिल्म का अहम हिस्सा है। दोनों अदाकारों ने अपने किरदारों के जज्बात को बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर जज्बाती मंजर भी अदाकारी ज़्यादा नुमाया महसूस होते हैं, जबकि रोमानी सीन्स में दोनों की केमिस्ट्री कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाती है। फिल्म में कॉमेडी और हल्के फुल्के लम्हात भी शामिल है जो संजीदा और जज्बाती मंजर के दरमियान एक अच्छा तवज़ुन पैदा करते हैं। कुछ सीन नाज़रीन को मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं जबकि कुछ लम्हात जज्बाती भी कर देते हैं। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो ये फिल्म के रोमानू माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। ख़ास तौर पर मोहब्बत से ताल्लुक़ मंजर में म्यूज़िक जज्बात को नुमाया करने में मदद देता है, लेकिन ज़ोर में कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। बाज़ मकामात पर कहानी की रफ्तार थोड़ी महसूस होती है और कुछ वाक़यात काफ़ी अंदाज़ रफ्त लगने के काबिल। अगर स्क्रिप्ट की मज़ीद मजबूत और कुछ किरदारों को मज़ीद गहराई दी जाती तो फ़िल्म का असर बेहतर हो सकता था। इसके बावजूद फिल्म इन लोगों के लिए एक अच्छी तफरीह साबित हो सकती है जो सादा लुमानी कहानी, जज्बाती मंजर और मोहब्बत पर मबनी फिल्में पसंद करते हैं। हमें ये पैगाम देते हैं कि मोहब्बत चीना लव स्टोरी खूबसूरत लम्हात का नाम नहीं बल्कि एतमाद, समझदारी और एक दूसरे के एहसास को एक कदर करने भी चाहिए, कदर करने का भी नाम भी है। मजमूई तौर पर एक हल्की फुल्की जज्बाती रोमानी फिल्म के जिसमें मोहब्बत के साथ साथ रिश्तों की पेचीदगी को भी दिखाने की कोशिश की गई है। मेरी तरफ से इसको मैं 10 में से 7.25 मिलेंगे। अगर आप चीनियल लैम स्टोरी देखें तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फ़िल्म की अदाकारी और दो रोमानी सीन्स कैसे लगे, और साथ ही साथ इसके मज़ीद इसके बारे में बात करने वाले इसके डायरेक्टर के बारे में बात की जाए वो है रवि नबूरी जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। अगर दोस्तों इसके राइटर की बात की जाए वो है सई रिजेश जो इस मूवी के राइटर है जिसने इस मूवी को लिखा है। अगर दोस्तों इसके प्रोड्यूसर पर बात की जाए वो है सरी विनिशा कुमार नधु एंड द सई रंजेश। अगर दोस्तों इसके स्टारिंग कौन है वो है किरण अभिराम एंड द सरी गोरी पिया जो इस मूवी के स्टारिंग हैं। जो कास्ट पर बात करते हैं वो ये दोनों हैं हीरो हैं। अगर दोस्तों इसके म्यूज़िक पर बात की जाए वो है मानी शर्मा जो इस मूवी के म्यूज़िक पर गाने गाता है। अगर दोस्तों इसके रिलीज डेट पर बात की जाए वो है 24 जुलाई 2026 को ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। अगर दोस्तों इसके रनिंग टाइम की बात की जाए
179 मिनट की टोटल मूवी है। कंट्री की बात की जाए वो है इंडिया। अगर दोस्तों इसके लैंग्वेज पर बात की जाए, इस मूवी को किस ज़बान में बनाया गया है, लैंग्वेज में बनाया, इस मूवी को तेलुगु में बनाया गया है। तो इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़ यानी बॉक्स ऑफिस 60 करोड़ यानी अभी अभी बहुत ज़्यादा ये मुनाफे पर चल रही है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ। वेलकम वीवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है चेन्नई लव स्टोरी। ये साउथ इंडियन की बेस्ट मूवी है जिसमें मोहब्बत, जज्बात भी है, रिश्तों में ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के एक सादा लेकिन दिलचस्प अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे नौजवान के गिर्द घूमती है जो अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की तलाश में है। हालात ऐसे ही है, एक ऐसी लड़की से मिलाते हैं जो बज़ाहिर इनसे काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। शुरू में दोनों के दरमियान इख्तलाफात और छोटी छोटी नोक चोक देखने को मिलती है, लेकिन वक्त के साथ यही ताल्लुक मोहब्बत में बदलने लगता है। फिल्म का खूबसूरत पहलू यह है कि मोहब्बत को सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि किरदारों के जज्बात, उनके ख्वाब, उनके मुस्तकबिल के फैसलों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है। दोनों मरकजी किरदार एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिश्तों के रास्ते में कई मुश्किलात और गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ते नाज़रीन को एहसास होता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे के करीब आने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने और करी कुर्बानी देने का नाम भी है। मरकजी किरदारों की अदाकारी फिल्म का अहम हिस्सा है। दोनों अदाकारों ने अपने किरदारों के जज्बात को बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर जज्बाती मंजर भी अदाकारी ज़्यादा नुमाया महसूस होते हैं, जबकि रोमानी सीन्स में दोनों की केमिस्ट्री कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाती है। फिल्म में कॉमेडी और हल्के फुल्के लम्हात भी शामिल है जो संजीदा और जज्बाती मंजर के दरमियान एक अच्छा तवज़ुन पैदा करते हैं। कुछ सीन नाज़रीन को मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं, जबकि कुछ लम्हात जज्बाती भी कर देते हैं। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो ये फिल्म के रोमानू माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। ख़ास तौर पर मोहब्बत से ताल्लुक़ मंजर में म्यूज़िक जज्बात को नुमाया करने में मदद देता है, लेकिन ज़ोर में कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। बाज़ मकामात पर कहानी की रफ्तार थोड़ी महसूस होती है और कुछ वाक़यात काफ़ी अंदाज़ रफ्त लगने के काबिल। अगर स्क्रिप्ट की मज़ीद मजबूत और कुछ किरदारों को मज़ीद गहराई दी जाती तो फ़िल्म का असर बेहतर हो सकता था। इसके बावजूद फिल्म इन लोगों के लिए एक अच्छी तफरीह साबित हो सकती है जो सादा लुमानी कहानी, जज्बाती मंजर और मोहब्बत पर मबनी फिल्में पसंद करते हैं। हमें ये पैगाम देते हैं कि मोहब्बत चीना लव स्टोरी खूबसूरत लम्हात का नाम नहीं, बल्कि एतमाद, समझदारी और एक दूसरे के एहसास को एक कदर करने का भी नाम भी है। मजमूई तौर पर एक हल्की फुल्की जज्बाती रोमानी फिल्म के जिसमें मोहब्बत के साथ साथ रिश्तों की पेचीदगी को भी दिखाने की कोशिश की गई है। मेरी तरफ से इसको मैं 10 में से 7.25 मिलेंगे। अगर आप चीनियल लैम स्टोरी देखें तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फ़िल्म की अदाकारी और दो रोमानी सीन्स कैसे लगे, और साथ ही साथ इसके मज़ीद इसके बारे में बात करने वाले इसके डायरेक्टर के बारे में बात की जाए वो है रवि नबूरी, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। अगर दोस्तों इसके राइटर की बात की जाए वो है सई रिजेश, जो इस मूवी के राइटर है जिसने इस मूवी को लिखा है। अगर दोस्तों इसके प्रोड्यूसर पर बात की जाए वो है सरी विनिशा कुमार नधु एंड द सई रंजेश। अगर दोस्तों इसके स्टारिंग कौन है वो है किरण अभिराम एंड द सरी गोरी पिया, जो इस मूवी के स्टारिंग हैं। जो कास्ट पर बात करते हैं वो ये दोनों हैं हीरो हैं। अगर दोस्तों इसके म्यूज़िक पर बात की जाए वो है मानी शर्मा, जो इस मूवी के म्यूज़िक पर गाने गाता है। अगर दोस्तों इसके रिलीज डेट पर बात की जाए वो है 24 जुलाई 2026 को ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। अगर दोस्तों इसके रनिंग टाइम की बात की जाए 179 मिनट की टोटल मूवी है। कंट्री की बात की जाए वो है इंडिया। अगर दोस्तों इसके लैंग्वेज पर बात की जाए, इस मूवी को किस ज़बान में बनाया गया है, लैंग्वेज में बनाया, इस मूवी को तेलुगु में बनाया गया है। तो इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़ यानी बॉक्स ऑफिस 60 करोड़ यानी अभी अभी बहुत ज़्यादा ये मुनाफे पर चल रही है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ।
वेलकम वीवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है चेन्नई लव स्टोरी। ये साउथ इंडियन की बेस्ट मूवी है जिसमें मोहब्बत जज्बात भी है, रिश्तों में ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के एक सादा लेकिन दिलचस्प अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे नौजवान के गिर्द घूमती है जो अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की तलाश में है। हालात ऐसे ही है, एक ऐसी लड़की से मिलाते हैं जो बज़ाहिर इनसे काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। शुरू में दोनों के दरमियान इख्तलाफात और छोटी छोटी नोक चोक देखने को मिलती है, लेकिन वक्त के साथ यही ताल्लुक मोहब्बत में बदलने लगता है। फिल्म का खूबसूरत पहलू यह है कि मोहब्बत को सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि किरदारों के जज्बात, उनके ख्वाब, उनके मुस्तकबिल के फैसलों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है। दोनों मरकजी किरदार एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिश्तों के रास्ते में कई मुश्किलात और गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ते नाज़रीन को एहसास होता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे के करीब आने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने और करी कुर्बानी देने का नाम भी है। मरकजी किरदारों की अदाकारी फिल्म का अहम हिस्सा है। दोनों अदाकारों ने अपने किरदारों के जज्बात को बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर जज्बाती मंजर भी अदाकारी ज़्यादा नुमाया महसूस होते हैं, जबकि रोमानी सीन्स में दोनों की केमिस्ट्री कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाती है। फिल्म में कॉमेडी और हल्के फुल्के लम्हात भी शामिल है जो संजीदा और जज्बाती मंजर के दरमियान एक अच्छा तवज़ुन पैदा करते हैं। कुछ सीन नाज़रीन को मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं, जबकि कुछ लम्हात जज्बाती भी कर देते हैं। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो ये फिल्म के रोमानू माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। ख़ास तौर पर मोहब्बत से ताल्लुक़ मंजर में म्यूज़िक जज्बात को नुमाया करने में मदद देता है, लेकिन ज़ोर में कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। बाज़ मकामात पर कहानी की रफ्तार थोड़ी महसूस होती है और कुछ वाक़यात काफ़ी अंदाज़ रफ्त लगने के काबिल। अगर स्क्रिप्ट की मज़ीद मजबूत और कुछ किरदारों को मज़ीद गहराई दी जाती तो फ़िल्म का असर बेहतर हो सकता था। इसके बावजूद फिल्म इन लोगों के लिए एक अच्छी तफरीह साबित हो सकती है जो सादा लुमानी कहानी, जज्बाती मंजर और मोहब्बत पर मबनी फिल्में पसंद करते हैं। हमें ये पैगाम दे दे कि मोहब्बत चीना लव स्टोरी खूबसूरत लम्हात का नाम नहीं, बल्कि एतमाद, समझदारी और एक दूसरे के एहसास को एक कदर करने का भी नाम भी है। मजमूई तौर पर एक हल्की फुल्की जज्बाती रोमानी फिल्म के जिसमें मोहब्बत के साथ साथ रिश्तों की पेचीदगी को भी दिखाने की कोशिश की गई है। मेरी तरफ से इसको मैं 10 में से 7.25 मिलेंगे। अगर आप चीनियल लैम्प स्टोरी देखें तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फ़िल्म की अदाकारी और दो रोमानी सीन्स कैसे लगे, और साथ ही साथ इसके मज़ीद इसके बारे में बात करने वाले इसके डायरेक्टर के बारे में बात की जाए, वो है रवि नबूरी, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। अगर दोस्तों इसके राइटर की बात की जाए, वो है सई रिजेश, जो इस मूवी के राइटर है, जिसने इस मूवी को लिखा है। अगर दोस्तों इसके प्रोड्यूसर पर बात की जाए, वो है सरी विनिशा कुमार नधु एंड द सई राजेश। अगर दोस्तों इसके स्टारिंग कौन है, वो है किरण अभिराम एंड द सरी गोरी पिया, जो इस मूवी के स्टारिंग हैं। जो कास्ट पर बात करते हैं वो ये दोनों हैं हीरो हैं। अगर दोस्तों इसके म्यूज़िक पर बात की जाए, वो है मानी शर्मा, जो इस मूवी के म्यूज़िक पर गाने गाता है। अगर दोस्तों इसके रिलीज डेट पर बात की जाए, वो है 24 जुलाई 2026 को ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। अगर दोस्तों इसके रनिंग टाइम की बात की जाए, 179 मिनट के टोटल मूवी है। कंट्री की बात की जाए, वो है इंडिया। अगर दोस्तों इसके लैंग्वेज पर बात की जाए, इस मूवी को किस ज़बान में बनाया गया है, लैंग्वेज में बनाया, इस मूवी को तेलुगु में बनाया गया है। तो इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़, यानी बॉक्स ऑफिस 60 करोड़, यानी अभी अभी बहुत ज़्यादा ये मुनाफे पर चल रही है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ। वेलकम वीवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है चेन्नई लव स्टोरी। ये साउथ इंडियन की बेस्ट मूवी है जिसमें मोहब्बत जज्बात भी है, रिश्तों में ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के एक सादा लेकिन दिलचस्प अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है।
فلم کی کہانی ایک ایسے نوجوان کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی میں محبت کی تلاش میں ہے۔ حالات ایسے ہی ایک ایسی لڑکی سے ملاتے ہیں جو بظاہر ان سے کافی مختلف نظر آتی ہے۔ شروع میں دونوں کے درمیان اختلافات اور چھوٹی چھوٹی نوک چوک دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہی تعلق محبت میں بدلنے لگتا ہے۔ فلم کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ محبت کو صرف رومانس تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ کرداروں کے جذبات، ان کے خواب، ان کے مستقبل کے فیصلوں کو بھی کہانی کا حصہ بنایا گیا ہے۔ دونوں مرکزی کردار ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رشتوں کے راستے میں کئی مشکلات اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتے ناظرین کو احساس ہوتا ہے کہ سچی محبت صرف ایک دوسرے کے قریب آنے کا نام نہیں، بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور قربانی دینے کا نام بھی ہے۔ مرکزی کرداروں کی اداکاری فلم کا اہم حصہ ہے۔ دونوں اداکاروں نے اپنے کرداروں کے جذبات کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ خاص طور پر جذباتی منظر بھی اداکاری زیادہ نمایاں محسوس ہوتے ہیں، جبکہ رومانوی سینس میں دونوں کی کیمسٹری کہانی کو مزید دلچسپ بناتی ہے۔ فلم میں کامیڈی اور ہلکے پھلکے لمحات بھی شامل ہیں جو سنجیدہ اور جذباتی منظر کے درمیان ایک اچھا توازن پیدا کرتے ہیں۔ کچھ سین ناظرین کو مسکرانے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ کچھ لمحات جذباتی بھی کر دیتے ہیں۔ میوزک اور بیک گراؤنڈ سکور کی بات کی جائے تو یہ فلم کے رومانوی ماحول کو مزید خوبصورت بناتے ہیں۔ خاص طور پر محبت سے تعلق منظر میں میوزک جذبات کو نمایاں کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن ضرور میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں۔ بعض مقامات پر کہانی کی رفتار تھوڑی محسوس ہوتی ہے اور کچھ واقعات کافی انداز رفت لگنے کے قابل ہیں۔ اگر اسکرپٹ کی مزید مضبوط اور کچھ کرداروں کو مزید گہرائی دی جاتی تو فلم کا اثر بہتر ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود فلم ان لوگوں کے لیے ایک اچھی تفریح ثابت ہو سکتی ہے جو سادہ رومانی کہانیاں، جذباتی منظر اور محبت پر مبنی فلمیں پسند کرتے ہیں۔ ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ محبت چینا لو سٹوری خوبصورت لمحات کا نام نہیں، بلکہ اعتماد، سمجھداری اور ایک دوسرے کے احساسات کو قدر کرنے کا بھی نام بھی ہے۔ مجموعی طور پر ایک ہلکی پھلکی جذباتی رومانوی فلم کے جس میں محبت کے ساتھ ساتھ رشتوں کی پیچیدگیوں کو بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میری طرف سے اس کو میں 10 میں سے 7 نمبر ملیں گے۔ اگر آپ چینل لیمب سٹوری دیکھیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو فلم کی اداکاری اور رومانوی سینس کیسے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بارے میں بات کرنے والے اس کے ڈائریکٹر کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے روی نبوری، جو اس مووی کے ڈائریکٹر ہیں۔ اگر دوستوں اس کے رائٹر کی بات کی جائے وہ ہے سی رجیش، جو اس مووی کے رائٹر ہے جس نے اس مووی کو لکھا ہے۔ اگر دوستوں اس کے پروڈیوسر پر بات کی جائے وہ ہے سری ونیشا کمار ندھو اینڈ دا سی رجیش۔ اگر دوستوں اس کے سٹارنگ کون ہے وہ ہے کرن ابھیرام اینڈ دا سری گوری پیا، جو اس مووی کے سٹارنگ ہیں۔ جو کاسٹ پر بات کرتے ہیں وہ یہ دونوں ہیں ہیرو ہیں۔ اگر دوستوں اس کے میوزک پر بات کی جائے وہ ہے مانی شرما، جو اس مووی کے میوزک پر گانے گاتا ہے۔ اگر دوستوں اس کے ریلیز ڈیٹ پر بات کی جائے وہ ہے 24 جولائی 2026 کو یہ مووی ریلیز ہو چکی ہے۔ اگر دوستوں اس کی رننگ ٹائم کی بات کی جائے 179 منٹ کے ٹوٹل مووی ہے۔ کنٹری کی بات کی جائے وہ ہے انڈیا۔ اگر دوستوں اس کے لینگویج پر بات کی جائے اس مووی کو کس زبان میں بنایا گیا ہے، لینگویج میں بنایا، اس مووی کو تلنگو میں بنایا گیا ہے، تو اس مووی کا ٹوٹل بجٹ 15 کروڑ یعنی باکس آفس 60 کروڑ، یعنی ابھی بہت زیادہ یہ منافع پر چل رہی ہے کیونکہ یہ بہت ہی اچھی مووی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ۔ ویلکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ایک ایسی مووی کے بارے میں جس کا نام ہے چنائی لو سٹوری۔ یہ ساؤتھ انڈین کی بیسٹ مووی ہے جس میں محبت، جذبات بھی ہے، رشتوں میں زندگی کے اتار چڑھاؤ کے ایک سادہ لیکن دلچسپ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ فلم کی کہانی ایک ایسے نوجوان کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی میں محبت کی تلاش میں ہے۔ حالات ایسے ہی ایک ایسی لڑکی سے ملاتے ہیں جو بظاہر ان سے کافی مختلف نظر آتی ہے۔ شروع میں دونوں کے درمیان اختلافات اور چھوٹی چھوٹی نوک چوک دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہی تعلق محبت میں بدلنے لگتا ہے۔ فلم کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ محبت کو صرف رومانس تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ کرداروں کے جذبات، ان کے خواب، ان کے
मुस्तकबिल के फैसलों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है। दोनों मरकजी किरदार एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिश्तों के रास्ते में कई मुश्किलात और गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ते नाज़रीन को एहसास होता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे के करीब आने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने और करी कुर्बानी देने का नाम भी है। मरकजी किरदारों की अदाकारी फिल्म का अहम हिस्सा है। दोनों अदाकारों ने अपने किरदारों के जज्बात को बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर जज्बाती मंजर भी अदाकारी ज़्यादा नुमाया महसूस होते हैं, जबकि रोमानी सीन्स में दोनों की केमिस्ट्री कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाती है। फिल्म में कॉमेडी और हल्के फुल्के लम्हात भी शामिल है, जो संजीदा और जज्बाती मंजर के दरमियान एक अच्छा तवज़ुन पैदा करते हैं। कुछ सीन नाज़रीन को मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं, जबकि कुछ लम्हात जज्बाती भी कर देते हैं। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो ये फिल्म के रोमानू माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। ख़ास तौर पर मोहब्बत से ताल्लुक़ मंजर में म्यूज़िक जज्बात को नुमाया करने में मदद देता है, लेकिन ज़ोर में कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। बाज़ मकामात पर कहानी की रफ्तार थोड़ी महसूस होती है और कुछ वाक़यात काफ़ी अंदाज़ रफ्त लगने के काबिल। अगर स्क्रिप्ट की मज़ीद मजबूत और कुछ किरदारों को मज़ीद गहराई दी जाती तो फ़िल्म का असर बेहतर हो सकता था। इसके बावजूद फिल्म इन लोगों के लिए एक अच्छी तफरीह साबित हो सकती है, जो सादा लुमानी कहानी, जज्बाती मंजर और मोहब्बत पर मबनी फिल्में पसंद करते हैं। हमें ये पैगाम दे दे कि मोहब्बत चीना लव स्टोरी खूबसूरत लम्हात का नाम नहीं, बल्कि एतमाद, समझदारी और एक दूसरे के एहसास को कदर करने का भी नाम भी है। मजमूई तौर पर एक हल्की फुल्की जज्बाती रोमानी फिल्म के जिसमें मोहब्बत के साथ साथ रिश्तों की पेचीदगी को भी दिखाने की कोशिश की गई है। मेरी तरफ से इसको मैं 10 में से 7.25 मिलेंगे। अगर आप चीनियल लैम्प स्टोरी देखें तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फ़िल्म की अदाकारी और दो रोमानी सीन्स कैसे लगे, और साथ ही साथ इसके मज़ीद इसके बारे में बात करने वाले इसके डायरेक्टर के बारे में बात की जाए, वो है रवि नबूरी, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। अगर दोस्तों इसके राइटर की बात की जाए, वो है सई रिजेश, जो इस मूवी के राइटर है, जिसने इस मूवी को लिखा है। अगर दोस्तों इसके प्रोड्यूसर पर बात की जाए, वो है सरी विनिशा कुमार नधु एंड द सई राजेश। अगर दोस्तों इसके स्टारिंग कौन है, वो है किरण अभिराम एंड द सरी गोरी पिया, जो इस मूवी के स्टारिंग हैं। जो कास्ट पर बात करते हैं वो ये दोनों हैं हीरो हैं। अगर दोस्तों इसके म्यूज़िक पर बात की जाए, वो है मानी शर्मा, जो इस मूवी के म्यूज़िक पर गाने गाता है। अगर दोस्तों इसके रिलीज डेट पर बात की जाए, वो है 24 जुलाई 2026 को ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। अगर दोस्तों इसकी रनिंग टाइम की बात की जाए, 179 मिनट के टोटल मूवी है। कंट्री की बात की जाए, वो है इंडिया। अगर दोस्तों इसके लैंग्वेज पर बात की जाए, इस मूवी को किस ज़बान में बनाया गया है, लैंग्वेज में बनाया, इस मूवी को तेलुगु में बनाया गया है। तो इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़, यानी बॉक्स ऑफिस 60 करोड़, यानी अभी अभी बहुत ज़्यादा ये मुनाफे पर चल रही है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ। वेलकम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है चेन्नई लव स्टोरी। ये साउथ इंडियन की बेस्ट मूवी है, जिसमें मोहब्बत जज्बात भी है, रिश्तों में ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के एक सादा लेकिन दिलचस्प अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे नौजवान के गिर्द घूमती है जो अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की तलाश में है। हालात ऐसे ही है, एक ऐसी लड़की से मिलाते हैं जो बज़ाहिर इनसे काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। शुरू में दोनों के दरमियान इख्तलाफात और छोटी छोटी नोक चोक देखने को मिलती है, लेकिन वक्त के साथ यही ताल्लुक़ मोहब्बत में बदलने लगता है। फिल्म का खूबसूरत पहलू यह है कि मोहब्बत को सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि किरदारों के जज्बात, उनके ख्वाब, उनके मुस्तकबिल के फैसलों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है। दोनों मरकजी किरदार एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिश्तों के रास्ते में कई मुश्किलात और गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ते नाज़रीन को एहसास होता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे के करीब आने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल
वक्त में एक दूसरे का साथ देने और कड़ी कुर्बानी देने का नाम भी है। मर्कजी किरदारों की अदाकारी फिल्म का अहम हिस्सा है। दोनों अदाकारों ने अपने किरदारों के जज्बात को बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर जज्बाती मंजर भी अदाकारी ज़्यादा नुमाया महसूस होते हैं, जबकि रोमानी सीन्स में दोनों की केमिस्ट्री कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाती है। फिल्म में कॉमेडी और हल्के फुल्के लम्हात भी शामिल है, जो संजीदा और जज्बाती मंजर के दरमियान एक अच्छा तवज़ुन पैदा करते हैं। कुछ सीन नाज़रीन को मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं, जबकि कुछ लम्हात जज्बाती भी कर देते हैं। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो ये फिल्म के रोमानू माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। ख़ास तौर पर मोहब्बत से ताल्लुक़ मंजर में म्यूज़िक जज्बात को नुमाया करने में मदद देता है, लेकिन ज़ोर में कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। बाज़ मकामात पर कहानी की रफ्तार थोड़ी महसूस होती है और कुछ वाक़यात काफ़ी अंदाज़ रफ्त लगने के काबिल। अगर स्क्रिप्ट की मज़ीद मजबूत और कुछ किरदारों को मज़ीद गहराई दी जाती तो फ़िल्म का असर बेहतर हो सकता था। इसके बावजूद फ़िल्म इन लोगों के लिए एक अच्छी तफरीह साबित हो सकती है, जो सादा लुमानी कहानी, जज्बाती मंजर और मोहब्बत पर मबनी फ़िल्में पसंद करते हैं। हमें ये पैगाम देते हैं कि मोहब्बत जीना लव स्टोरी खूबसूरत लम्हात का नाम नहीं, बल्कि एतमाद, समझदारी और एक दूसरे के एहसास को एक कदर करने का भी नाम भी है। मजमूई तौर पर एक हल्की फुल्की जज्बाती रोमानी फ़िल्म के जिसमें मोहब्बत के साथ साथ रिश्तों की पेचीदगियों को भी दिखाने की कोशिश की गई है। मेरी तरफ से इसको मैं 10 में से 7.25 मिलेंगे। अगर आप चीनियल लैम्प स्टोरी देखें तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फ़िल्म की अदाकारी और दो रोमानी सीन्स कैसे लगे, और साथ ही साथ इसके मज़ीद इसके बारे में बात करने वाले इसके डायरेक्टर के बारे में बात की जाए, वो है रवि नबूरी, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। अगर दोस्तों इसके राइटर की बात की जाए, वो है सई रिजेश, जो इस मूवी के राइटर है, जिसने इस मूवी को लिखा है। अगर दोस्तों इसके प्रोड्यूसर पर बात की जाए, वो है सरी विनिशा कुमार नधु एंड द सई राजेश। अगर दोस्तों इसके स्टारिंग कौन है, वो है किरण अभिराम एंड द सरी गोरी पिया, जो इस मूवी के स्टारिंग हैं। जो कास्ट पर बात करते हैं वो ये दोनों हैं हीरो हैं। अगर दोस्तों इसके म्यूज़िक पर बात की जाए, वो है मानी शर्मा, जो इस मूवी के म्यूज़िक पर गाने गाता है। अगर दोस्तों इसके रिलीज डेट पर बात की जाए, वो है 24 जुलाई 2026 को ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। अगर दोस्तों इसकी रनिंग टाइम की बात की जाए, 179 मिनट के टोटल मूवी है। कंट्री की बात की जाए, वो है इंडिया। अगर दोस्तों इसके लैंग्वेज पर बात की जाए, इस मूवी को किस ज़बान में बनाया गया है, लैंग्वेज में बनाया, इस मूवी को तेलुगु में बनाया गया है। तो इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़, यानी बॉक्स ऑफिस 60 करोड़, यानी अभी अभी बहुत ज़्यादा ये मुनाफे पर चल रही है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ। वेलकम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है चेन्नई लव स्टोरी। ये साउथ इंडियन की बेस्ट मूवी है, जिसमें मोहब्बत जज्बात भी है, रिश्तों में ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के एक सादा लेकिन दिलचस्प अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे नौजवान के गिर्द घूमती है जो अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की तलाश में है। हालात ऐसे ही है, एक ऐसी लड़की से मिलाते हैं जो बज़ाहिर इनसे काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। शुरू में दोनों के दरमियान इख्तलाफात और छोटी छोटी नोक चोक देखने को मिलती है, लेकिन वक्त के साथ यही ताल्लुक मोहब्बत में बदलने लगता है। फिल्म का खूबसूरत पहलू यह है कि मोहब्बत को सिर्फ रोमांस तक महमूद नहीं रखा गया, बल्कि किरदारों के जज्बात, उनके ख्वाब, उनके मुस्तकबिल के फैसलों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है। दोनों मरकजी किरदार एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिश्तों के रास्ते में कई मुश्किलात और गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ते नाज़रीन को एहसास होता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे के करीब आने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने और कड़ी कुर्बानी देने का नाम भी है। मर्कजी किरदारों की अदाकारी फिल्म का अहम हिस्सा है। दोनों अदाकारों ने अपने किरदारों के जज्बात को बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर जज्बाती मंजर भी अदाकारी ज़्यादा नुमाया महसूस होते हैं, जबकि रोमानी सीन्स में दोनों की केमिस्ट्री कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाती है। फिल्म में कॉमेडी और हल्के फुल्के लम्हात भी शामिल है, जो संजीदा और जज्बाती मंजर के दरमियान एक अच्छा तवज़ुन पैदा करते हैं।
कुछ सीन नाज़रीन को मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं, जबकि कुछ लम्हात जज्बाती भी कर देते हैं। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो ये फ़िल्म के रोमानू माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। ख़ास तौर पर मोहब्बत से ताल्लुक़ मंज़र में म्यूज़िक जज्बात को नुमायाँ करने में मदद देता है। लेकिन ज़ोर में कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। बाज़ मकामात पर कहानी की रफ्तार थोड़ी महसूस होती है और कुछ वाक़यात काफ़ी अंदाज़ रफ्त लगने के काबिल हैं। अगर स्क्रिप्ट की मज़ीद मज़बूत और कुछ किरदारों को मज़ीद गहराई दी जाती तो फ़िल्म का असर बेहतर हो सकता था। इसके बावजूद फ़िल्म इन लोगों के लिए एक अच्छी तफरीह साबित हो सकती है जो सादा लुमानी कहानियाँ, जज्बाती मंज़र और मोहब्बत पर मबनी फ़िल्में पसंद करते हैं। हमें ये पैगाम दे दे कि मोहब्बत जीना लव स्टोरी खूबसूरत लम्हात का नाम नहीं बल्कि एतमाद, समझदारी और एक दूसरे के एहसास को एक कदर करने का भी नाम भी है। मजमूई तौर पर एक हल्की फुल्की जज्बाती रोमानी फ़िल्म के जिसमें मोहब्बत के साथ साथ रिश्तों की पेचीदगियों को भी दिखाने की कोशिश की गई है। मेरी तरफ से इसको मैं 10 में से 7.25 मिलेंगे। अगर आप चीनियल लैम्प स्टोरी देखें तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फ़िल्म की अदाकारी और दो रोमानी सीन्स कैसे लगे, और साथ ही साथ इसके मज़ीद इसके बारे में बात करने वाले इसके डायरेक्टर के बारे में बात की जाए वो है रवि नबूरी, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। अगर दोस्तों इसके राइटर की बात की जाए वो है सई रिजेश, जो इस मूवी के राइटर है जिसने इस मूवी को लिखा है। अगर दोस्तों इसके प्रोड्यूसर पर बात की जाए वो है सरी विनिशा कुमार नधु एंड द सई राजेश। अगर दोस्तों इसके स्टारिंग कौन है वो है किरण अभिराम एंड द सरी गोरी पिया, जो इस मूवी के स्टारिंग हैं। जो कास्ट पर बात करते हैं वो ये दोनों हैं हीरो हैं। अगर दोस्तों इसके म्यूज़िक पर बात की जाए वो है मानी शर्मा, जो इस मूवी के म्यूज़िक पर गाने गाता है। अगर दोस्तों इसके रिलीज डेट पर बात की जाए वो है 24 जुलाई 2026 को ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। अगर दोस्तों इसकी रनिंग टाइम की बात की जाए 179 मिनट के टोटल मूवी है। कंट्री की बात की जाए वो है इंडिया। अगर दोस्तों इसके लैंग्वेज पर बात की जाए इस मूवी को किस ज़बान में बनाया गया है, लैंग्वेज में बनाया, इस मूवी को तेलुगु में बनाया गया है। तो इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़ यानी बॉक्स ऑफिस 60 करोड़ यानी अभी अभी बहुत ज़्यादा ये मुनाफे पर चल रही है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ। वेलकम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है चेन्नई लव स्टोरी। ये साउथ इंडियन की बेस्ट मूवी है जिसमें मोहब्बत जज्बात भी है, रिश्तों में ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के एक सादा लेकिन दिलचस्प अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे नौजवान के गिर्द घूमती है जो अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की तलाश में है। हालात ऐसे ही है, एक ऐसी लड़की से मिलाते हैं जो बज़ाहिर इनसे काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। शुरू में दोनों के दरमियान इख्तलाफात और छोटी छोटी नोक चोक देखने को मिलती है, लेकिन वक्त के साथ यही ताल्लुक मोहब्बत में बदलने लगता है। फिल्म का खूबसूरत पहलू यह है कि मोहब्बत को सिर्फ रोमांस तक महमूद नहीं रखा गया, बल्कि किरदारों के जज्बात, उनके ख्वाब, उनके मुस्तकबिल के फैसलों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है। दोनों मरकजी किरदार एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिश्तों के रास्ते में कई मुश्किलात और गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ते नाज़रीन को एहसास होता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे के करीब आने का नाम नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने और करी कुर्बानी देने का नाम भी है। मरकजी किरदारों की अदाकारी फिल्म का अहम हिस्सा है। दोनों अदाकारों ने अपने किरदारों के जज्बात को बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर जज्बाती मंजर भी अदाकारी ज़्यादा नुमाया महसूस होते हैं, जबकि रोमानी सीन्स में दोनों की केमिस्ट्री कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाती है। फिल्म में कॉमेडी और हल्के फुल्के लम्हात भी शामिल है जो संजीदा और जज्बाती मंजर के दरमियान एक अच्छा तवज़ुन पैदा करते हैं। कुछ सीन नाज़रीन को मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं, जबकि कुछ लम्हात जज्बाती भी कर देते हैं। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो ये फिल्म के रोमानू माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। ख़ास तौर पर मोहब्बत से ताल्लुक़ मंजर में म्यूज़िक जज्बात को नुमायाँ करने में मदद देता है, लेकिन ज़ोर में कुछ कमियाँ कमज़ोरियाँ भी हैं। बाज़
मकामात पर कहानी की रफ्तार थोड़ी महसूस होती है और कुछ वाक़यात काफ़ी अंदाज़ रफ्त लगने के काबिल। अगर स्क्रिप्ट की मज़ीद मज़बूत और कुछ किरदारों को मज़ीद गहराई दी जाती तो फ़िल्म का असर बेहतर हो सकता था। इसके बावजूद फ़िल्म इन लोगों के लिए एक अच्छी तफरीह साबित हो सकती है जो सादा लुमानी कहानियाँ, जज्बाती मंज़र और मोहब्बत पर मबनी फ़िल्में पसंद करते हैं। हमें ये पैगाम दे दे कि मोहब्बत जीना लव स्टोरी खूबसूरत लम्हात का नाम नहीं बल्कि एतमाद, समझदारी और एक दूसरे के एहसास को एक कदर करने का भी नाम भी है। मजमूई तौर पर एक हल्की फुल्की जज्बाती रोमानी फ़िल्म के जिसमें मोहब्बत के साथ साथ रिश्तों की पेचीदगियों को भी दिखाने की कोशिश की गई है। मेरी तरफ से इसको मैं 10 में से 7.25 मिलेंगे। अगर आप चीनियल लैम्प स्टोरी देखें तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फ़िल्म की अदाकारी और दो रोमानी सीन्स कैसे लगे, और साथ ही साथ इसके मज़ीद इसके बारे में बात करने वाले इसके डायरेक्टर के बारे में बात की जाए वो है रवि नबूरी जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। अगर दोस्तों इसके राइटर की बात की जाए वो है सई रिजेश जो इस मूवी के राइटर है जिसने इस मूवी को लिखा है। अगर दोस्तों इसके प्रोड्यूसर पर बात की जाए वो है सरी विनिशा कुमार नधु एंड द सई राजेश। अगर दोस्तों इसके स्टारिंग कौन है वो है किरण अभिराम एंड द सरी गोरी पिया जो इस मूवी के स्टारिंग हैं। जो कास्ट पर बात करते हैं वो ये दोनों हैं हीरो हैं। अगर दोस्तों इसके म्यूज़िक पर बात की जाए वो है मानी शर्मा जो इस मूवी के म्यूज़िक पर गाने गाता है। अगर दोस्तों इसके रिलीज डेट पर बात की जाए वो है 24 जुलाई 2026 को ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। अगर दोस्तों इसकी रनिंग टाइम की बात की जाए 179 मिनट के टोटल मूवी या कंट्री की बात की जाए वो है इंडिया। अगर दोस्तों इसके लैंग्वेज पर बात की जाए इस मूवी को किस ज़बान में बनाया गया है, लैंग्वेज में बनाया, इस मूवी को तेलुगु में बनाया गया है। तो इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़ यानी बॉक्स ऑफिस 60 करोड़ यानी अभी अभी बहुत ज़्यादा ये मुनाफे पर चल रही है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ। वेलकम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है चेन्नई लव स्टोरी। ये साउथ इंडियन की बेस्ट मूवी है जिसमें मोहब्बत जज्बात भी है, रिश्तों में ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के एक सादा लेकिन दिलचस्प अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे नौजवान के गिर्द घूमती है जो अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की तलाश में है। हालात ऐसे ही है एक ऐसी लड़की से मिलाते हैं जो बज़ाहिर इनसे काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। शुरू में दोनों के दरमियान इख्तलाफात और छोटी छोटी नोक चोक देखने को मिलती है लेकिन वक्त के साथ यही ताल्लुक मोहब्बत में बदलने लगता है। फिल्म का खूबसूरत पहलू यह है कि मोहब्बत को सिर्फ रोमांस तक महमूद नहीं रखा गया बल्कि किरदारों के जज्बात, उनके ख्वाब, उनके मुस्तकबिल के फैसलों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है। दोनों मरकजी किरदार एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन रिश्तों के रास्ते में कई मुश्किलात और गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ते नाज़रीन को एहसास होता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे के करीब आने का नाम नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने और करी कुर्बानी देने का नाम भी है। मरकजी किरदारों की अदाकारी फिल्म का अहम हिस्सा है। दोनों अदाकारों ने अपने किरदारों के जज्बात को बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर जज्बाती मंजर भी अदाकारी ज़्यादा नुमाया महसूस होते हैं जबकि रोमानी सीन्स में दोनों की केमिस्ट्री कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाती है। फिल्म में कॉमेडी और हल्के फुल्के लम्हात भी शामिल है जो संजीदा और जज्बाती मंजर के दरमियान एक अच्छा तवज़ुन पैदा करते हैं। कुछ सीन नाज़रीन को मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं जबकि कुछ लम्हात जज्बाती भी कर देते हैं। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो ये फिल्म के रोमानू माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। ख़ास तौर पर मोहब्बत से ताल्लुक़ मंजर में म्यूज़िक जज्बात को नुमाया करने में मदद देता है लेकिन ज़ोर में कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। बाज़ मकामात पर कहानी की रफ्तार थोड़ी महसूस होती है और कुछ वाक़यात काफ़ी अंदाज़ रफ्त लगने के काबिल। अगर स्क्रिप्ट की मज़ीद मजबूत और कुछ किरदारों को मज़ीद गहराई दी जाती तो फ़िल्म का असर बेहतर हो सकता था।
اس کے باوجود فلم ان لوگوں کے لیے ایک اچھی تفریح ثابت ہو سکتی ہے جو سادہ لمحانی کہانیاں، جذباتی منظر اور محبت پر مبنی فلمیں پسند کرتے ہیں۔ ہمیں یہ پیغام دے دے کہ محبت جینا لو سٹوری خوبصورت لمحات کا نام نہیں بلکہ اعتماد، سمجھداری اور ایک دوسرے کے احساسات کو قدر کرنے کا بھی نام بھی ہے۔ مجموعی طور پر ایک ہلکی پھلکی جذباتی رومانی فلم کے جس میں محبت کے ساتھ ساتھ رشتوں کی پیچیدگیوں کو بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میری طرف سے اس کو میں 10 میں سے 7.25 ملیں گے۔ اگر آپ چینیل لیمب سٹوری دیکھیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو فلم کی اداکاری اور رومانی سینز کیسے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مزید اس کے بارے میں بات کرنے والے اس کے ڈائریکٹر کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے روی نبوری جو اس مووی کے ڈائریکٹر ہیں۔ اگر دوستوں اس کے رائٹر کی بات کی جائے وہ ہے سی رجیش جو اس مووی کے رائٹر ہے جس نے اس مووی کو لکھا ہے۔ اگر دوستوں اس کے پروڈیوسر پر بات کی جائے وہ ہے سری ونیشا کمار ندو اینڈ دا سی رجیش۔ اگر دوستوں اس کے سٹارنگ کون ہے وہ ہے کرن ابھیرام اینڈ دا سری گوری پیا جو اس مووی کے سٹارنگ ہیں۔ جو کاسٹ پر بات کرتے ہیں وہ یہ دونوں ہیں ہیرو ہیں۔ اگر دوستوں اس کے میوزک پر بات کی جائے وہ ہے مانی شرما جو اس مووی کے میوزک پر گانے گاتا ہے۔ اگر دوستوں اس کے ریلیز ڈیٹ پر بات کی جائے وہ ہے 24 جولائی 2026 کو یہ مووی ریلیز ہو چکی ہے۔ اگر دوستوں اس کی رننگ ٹائم کی بات کی جائے 179 منٹ کے ٹوٹل مووی ہے۔ کنٹری کی بات کی جائے وہ ہے انڈیا۔ اگر دوستوں اس کے لینگویج پر بات کی جائے اس مووی کو کس زبان میں بنایا گیا ہے، لینگویج میں بنایا اس مووی کو تلنگو میں بنایا گیا ہے، تو اس مووی کا ٹوٹل بجٹ 15 کروڑ یعنی باکس آفس 60 کروڑ یعنی ابھی بہت زیادہ یہ منافع پر چل رہی ہے کیونکہ یہ بہت ہی اچھی مووی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ۔ ویلکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ایک ایسی مووی کے بارے میں جس کا نام ہے چنائی لو سٹوری۔ یہ ساؤتھ انڈین کی بیسٹ مووی ہے جس میں محبت، جذبات بھی ہے، رشتوں میں زندگی کے اتار چڑھاؤ کے ایک سادہ لیکن دلچسپ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ فلم کی کہانی ایک ایسے نوجوان کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی میں محبت کی تلاش میں ہے۔ حالات ایسے ہی ایک ایسی لڑکی سے ملاتے ہیں جو بظاہر ان سے کافی مختلف نظر آتی ہے۔ شروع میں دونوں کے درمیان اختلافات اور چھوٹی چھوٹی نوک چوک دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہی تعلق محبت میں بدلنے لگتا ہے۔ فلم کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ محبت کو صرف رومانس تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ کرداروں کے جذبات، ان کے خواب، ان کے مستقبل کے فیصلوں کو بھی کہانی کا حصہ بنایا گیا ہے۔ دونوں مرکزی کردار ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رشتوں کے راستے میں کئی مشکلات اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتے ناظرین کو احساس ہوتا ہے کہ سچی محبت صرف ایک دوسرے کے قریب آنے کا نام نہیں بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور قربانی دینے کا نام بھی ہے۔ مرکزی کرداروں کی اداکاری فلم کا اہم حصہ ہے۔ دونوں اداکاروں نے اپنے کرداروں کے جذبات کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ خاص طور پر جذباتی منظر بھی اداکاری زیادہ نمایاں محسوس ہوتے ہیں جبکہ رومانی سینز میں دونوں کی کیمسٹری کہانی کو مزید دلچسپ بناتی ہے۔ فلم میں کامیڈی اور ہلکے پھلکے لمحات بھی شامل ہیں جو سنجیدہ اور جذباتی منظر کے درمیان ایک اچھا توازن پیدا کرتے ہیں۔ کچھ سین ناظرین کو مسکرانے پر مجبور کرتے ہیں جبکہ کچھ لمحات جذباتی بھی کر دیتے ہیں۔ میوزک اور بیک گراؤنڈ سکور کی بات کی جائے تو یہ فلم کے رومانوی ماحول کو مزید خوبصورت بناتے ہیں۔ خاص طور پر محبت سے تعلق منظر میں میوزک جذبات کو نمایاں کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن ضرور میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں۔ بعض مقامات پر کہانی کی رفتار تھوڑی محسوس ہوتی ہے اور کچھ واقعات کافی انداز رفت لگنے کے قابل ہیں۔ اگر اسکرپٹ کی مزید مضبوط اور کچھ کرداروں کو مزید گہرائی دی جاتی تو فلم کا اثر بہتر ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود فلم ان لوگوں کے لیے ایک اچھی تفریح ثابت ہو سکتی ہے جو سادہ لمحانی کہانیاں، جذباتی منظر اور محبت پر مبنی فلمیں پسند کرتے ہیں۔ ہمیں یہ پیغام دے دے کہ محبت جینا لو سٹوری خوبصورت لمحات کا نام نہیں بلکہ اعتماد، سمجھداری اور ایک دوسرے کے احساسات کو قدر کرنے بھی چاہیے۔
قدر کرنے کا بھی نام بھی ہے۔ مجموعی طور پر ایک ہلکی پھلکی جذباتی رومانی فلم کے جس میں محبت کے ساتھ ساتھ رشتوں کی پیچیدگیوں کو بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میری طرف سے اس کو میں 10 میں سے 7.25 ملیں گے۔ اگر آپ چینیل لیمب سٹوری دیکھیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو فلم کی اداکاری اور رومانس سینس کیسے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مزید اس کے بارے میں بات کرنے والے اس کے ڈائریکٹر کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے روی نبوری، جو اس مووی کے ڈائریکٹر ہیں۔ اگر دوستوں اس کے رائٹر کی بات کی جائے وہ ہے سی رجیش، جو اس مووی کے رائٹر ہے جس نے اس مووی کو لکھا ہے۔ اگر دوستوں اس کے پروڈیوسر پر بات کی جائے وہ ہے سری ونیشا کمار ندو اینڈ دا سی رجیش۔ اگر دوستوں اس کے سٹارنگ کون ہے وہ ہے کرن ابھیرام اینڈ دا سری گوری پیا، جو اس مووی کے سٹارنگ ہیں۔ جو کاسٹ پر بات کرتے ہیں وہ یہ دونوں ہیں ہیرو ہیں۔ اگر دوستوں اس کے میوزک پر بات کی جائے وہ ہے مانی شرما، جو اس مووی کے میوزک پر گانے گاتا ہے۔ اگر دوستوں اس کے ریلیز ڈیٹ پر بات کی جائے وہ ہے 24 جولائی 2026 کو یہ مووی ریلیز ہو چکی ہے۔ اگر دوستوں اس کی رننگ ٹائم کی بات کی جائے 179 منٹ کے ٹوٹل مووی ہے۔ کنٹری کی بات کی جائے وہ ہے انڈیا۔ اگر دوستوں اس کے لینگویج پر بات کی جائے اس مووی کو کس زبان میں بنایا گیا ہے، لینگویج میں بنایا، اس مووی کو تلنگو میں بنایا گیا ہے، تو اس مووی کا ٹوٹل بجٹ 15 کروڑ یعنی باکس آفس 60 کروڑ، یعنی ابھی بہت زیادہ یہ منافع پر چل رہی ہے کیونکہ یہ بہت ہی اچھی مووی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ۔ ویلکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ایک ایسی مووی کے بارے میں جس کا نام ہے چنائی لو سٹوری۔ یہ ساؤتھ انڈین کی بیسٹ مووی ہے جس میں محبت، جذبات بھی ہے، رشتوں میں زندگی کے اتار چڑھاؤ کے ایک سادہ لیکن دلچسپ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ فلم کی کہانی ایک ایسے نوجوان کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی میں محبت کی تلاش میں ہے۔ حالات ایسے ہی ایک ایسی لڑکی سے ملاتے ہیں جو بظاہر ان سے کافی مختلف نظر آتی ہے۔ شروع میں دونوں کے درمیان اختلافات اور چھوٹی چھوٹی نوک چوک دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہی تعلق محبت میں بدلنے لگتا ہے۔ فلم کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ محبت کو صرف رومانس تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ کرداروں کے جذبات، ان کے خواب، ان کے مستقبل کے فیصلوں کو بھی کہانی کا حصہ بنایا گیا ہے۔ دونوں مرکزی کردار ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رشتوں کے راستے میں کئی مشکلات اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتے ناظرین کو احساس ہوتا ہے کہ سچی محبت صرف ایک دوسرے کے قریب آنے کا نام نہیں، بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور قربانی دینے کا نام بھی ہے۔ مرکزی کرداروں کی اداکاری فلم کا اہم حصہ ہے۔ دونوں اداکاروں نے اپنے کرداروں کے جذبات کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ خاص طور پر جذباتی منظر بھی اداکاری زیادہ نمایاں محسوس ہوتے ہیں، جبکہ رومانی سینس میں دونوں کی کیمسٹری کہانی کو مزید دلچسپ بناتی ہے۔ فلم میں کامیڈی اور ہلکے پھلکے لمحات بھی شامل ہیں جو سنجیدہ اور جذباتی منظر کے درمیان ایک اچھا توازن پیدا کرتے ہیں۔ کچھ سین ناظرین کو مسکرانے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ کچھ لمحات جذباتی بھی کر دیتے ہیں۔ میوزک اور بیک گراؤنڈ اسکور کی بات کی جائے تو یہ فلم کے رومانوی ماحول کو مزید خوبصورت بناتے ہیں۔ خاص طور پر محبت سے تعلق منظر میں میوزک جذبات کو نمایاں کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن ضرور میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں۔ بعض مقامات پر کہانی کی رفتار تھوڑی محسوس ہوتی ہے اور کچھ واقعات کافی انداز رفت لگنے کے قابل ہیں۔ اگر اسکرپٹ کی مزید مضبوط اور کچھ کرداروں کو مزید گہرائی دی جاتی تو فلم کا اثر بہتر ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود فلم ان لوگوں کے لیے ایک اچھی تفریح ثابت ہو سکتی ہے جو سادہ رومانی کہانیاں، جذباتی منظر اور محبت پر مبنی فلمیں پسند کرتے ہیں۔ ہمیں یہ پیغام دے دے کہ محبت چینل لو سٹوری خوبصورت لمحات کا نام نہیں، بلکہ اعتماد، سمجھداری اور ایک دوسرے کے احساسات کو قدر کرنے بھی چاہیے، قدر کرنے کا بھی نام بھی ہے۔ مجموعی طور پر ایک ہلکی پھلکی جذباتی رومانی فلم کے جس میں محبت کے ساتھ ساتھ رشتوں کی پیچیدگیوں کو بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میری طرف سے اس کو میں 10 میں سے 7.25 ملیں گے۔ اگر آپ چینیل لیمب سٹوری دیکھیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو فلم کی اداکاری اور رومانس سینس کیسے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مزید اس کے بارے میں بات کرنے والے اس کے ڈائریکٹر کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے روی نبوری۔
नबूरी जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। अगर दोस्तों इसके राइटर की बात की जाए वो है सई रिजेश जो इस मूवी के राइटर है जिसने इस मूवी को लिखा है। अगर दोस्तों इसके प्रोड्यूसर पर बात की जाए वो है सरी विनिशा कुमार नधु एंड द सई राजेश। अगर दोस्तों इसके स्टारिंग कौन है वो है किरण अभिराम एंड द सरी गोरी पिया जो इस मूवी के स्टारिंग हैं। जो कास्ट पर बात करते हैं वो ये दोनों हैं हीरो हैं। अगर दोस्तों इसके म्यूज़िक पर बात की जाए वो है मानी शर्मा जो इस मूवी के म्यूज़िक पर गाने गाता है। अगर दोस्तों इसके रिलीज डेट पर बात की जाए वो है 24 जुलाई 2026 को ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। अगर दोस्तों इसकी रनिंग टाइम की बात की जाए 179 मिनट के टोटल मूवी है। कंट्री की बात की जाए वो है इंडिया। अगर दोस्तों इसके लैंग्वेज पर बात की जाए इस मूवी को किस ज़बान में बनाया गया है, लैंग्वेज में बनाया, इस मूवी को तेलुगु में बनाया गया है। तो इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़ यानी बॉक्स ऑफिस 60 करोड़ यानी अभी अभी बहुत ज़्यादा ये मुनाफे पर चल रही है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ। वेलकम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है चेन्नई लव स्टोरी। ये साउथ इंडियन की बेस्ट मूवी है जिसमें मोहब्बत जज्बात भी है, रिश्तों में ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के एक सादा लेकिन दिलचस्प अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे नौजवान के गिर्द घूमती है जो अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की तलाश में है। हालात ऐसे ही है एक ऐसी लड़की से मिलाते हैं जो बज़ाहिर इनसे काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। शुरू में दोनों के दरमियान इख्तलाफात और छोटी छोटी नोक चोक देखने को मिलती है, लेकिन वक्त के साथ यही ताल्लुक मोहब्बत में बदलने लगता है। फिल्म का खूबसूरत पहलू यह है कि मोहब्बत को सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं रखा गया बल्कि किरदारों के जज्बात, उनके ख्वाब, उनके मुस्तकबिल के फैसलों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है। दोनों मरकजी किरदार एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिश्तों के रास्ते में कई मुश्किलात और गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ते नाज़रीन को एहसास होता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे के करीब आने का नाम नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने और करीब कुर्बानी देने का नाम भी है। मरकजी किरदारों की अदाकारी फिल्म का अहम हिस्सा है। दोनों अदाकारों ने अपने किरदारों के जज्बात को बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर जज्बाती मंजर भी अदाकारी ज़्यादा नुमाया महसूस होते हैं, जबकि रोमानी सीन्स में दोनों की केमिस्ट्री कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाती है। फिल्म में कॉमेडी और हल्के फुल्के लम्हात भी शामिल है जो संजीदा और जज्बाती मंजर के दरमियान एक अच्छा तवज़ुन पैदा करते हैं। कुछ सीन नाज़रीन को मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं जबकि कुछ लम्हात जज्बाती भी कर देते हैं। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो ये फिल्म के रोमानू माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। ख़ास तौर पर मोहब्बत से ताल्लुक़ मंजर में म्यूज़िक जज्बात को नुमाया करने में मदद देता है, लेकिन ज़ोर में कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। बाज़ मकामात पर कहानी की रफ्तार थोड़ी महसूस होती है और कुछ वाक़यात काफ़ी अंदाज़ रफ्त लगने के काबिल। अगर स्क्रिप्ट की मज़ीद मजबूत और कुछ किरदारों को मज़ीद गहराई दी जाती तो फिल्म का असर बेहतर हो सकता था। इसके बावजूद फिल्म इन लोगों के लिए एक अच्छी तफरीह साबित हो सकती है जो सादा लुमानी कहानी, जज्बाती मंजर और मोहब्बत पर मबनी फिल्में पसंद करते हैं। हमें ये पैगाम दे दे कि मोहब्बत चीना लव स्टोरी खूबसूरत लम्हात का नाम नहीं बल्कि एतमाद, समझदारी और एक दूसरे के एहसास को एक कदर करने भी चाहिए, कदर करने का भी नाम भी है। मजमूई तौर पर एक हल्की फुल्की जज्बाती रोमानी फिल्म के जिसमें मोहब्बत के साथ साथ रिश्तों की पेचीदगी को भी दिखाने की कोशिश की गई है। मेरी तरफ से इसको मैं 10 में से 7.25 मिलेंगे। अगर आप चीनियल लैम स्टोरी देखें तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फिल्म की अदाकारी और दो रोमानी सीन्स कैसे लगे, और साथ ही साथ इसके मज़ीद इसके बारे में बात करने वाले इसके डायरेक्टर के बारे में बात की जाए वो है रवि नबूरी जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। अगर दोस्तों इसके राइटर की बात की जाए वो है सई रिजेश जो इस मूवी के राइटर है जिसने इस मूवी को लिखा है। अगर दोस्तों इसके प्रोड्यूसर पर बात की जाए वो है सरी विनिशा कुमार नधु एंड द सई राजेश। अगर दोस्तों इसके स्टारिंग कौन है वो है किरण
अभिराम एंड सरी गोरी पिया जो इस मूवी के स्टारिंग हैं। जो कास्ट पर बात करते हैं वो ये दोनों हैं हीरो हैं। अगर दोस्तों इसके म्यूज़िक पर बात की जाए वो है मानी शर्मा जो इस मूवी के म्यूज़िक पर गाने गाता है। अगर दोस्तों इसके रिलीज डेट पर बात की जाए वो है 24 जुलाई 2026 को ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। अगर दोस्तों इसकी रनिंग टाइम की बात की जाए 179 मिनट के टोटल मूवी या कंट्री की बात की जाए वो है इंडिया। अगर दोस्तों इसके लैंग्वेज पर बात की जाए इस मूवी को किस ज़बान में बनाया गया है, लैंग्वेज में बनाया इस मूवी को तेलुगु में बनाया गया है। तो इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़ यानी बॉक्स ऑफिस 60 करोड़ यानी अभी अभी बहुत ज़्यादा ये मुनाफे पर चल रही है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ। वेलकम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है चेन्नई लव स्टोरी। ये साउथ इंडियन की बेस्ट मूवी है जिसमें मोहब्बत जज्बात भी है, रिश्तों में ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के एक सादा लेकिन दिलचस्प अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे नौजवान के गिर्द घूमती है जो अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की तलाश में है। हालात ऐसे ही है एक ऐसी लड़की से मिलाते हैं जो बज़ाहिर इनसे काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। शुरू में दोनों के दरमियान इख्तलाफात और छोटी छोटी नोक चोक देखने को मिलती है, लेकिन वक्त के साथ यही ताल्लुक मोहब्बत में बदलने लगता है। फिल्म का खूबसूरत पहलू यह है कि मोहब्बत को सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं रखा गया बल्कि किरदारों के जज्बात, उनके ख्वाब, उनके मुस्तकबिल के फैसलों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है। दोनों मरकजी किरदार एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिश्तों के रास्ते में कई मुश्किलात और गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ते नाज़रीन को एहसास होता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे के करीब आने का नाम नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने और करीब कुर्बानी देने का नाम भी है। मरकजी किरदारों की अदाकारी फिल्म का अहम हिस्सा है। दोनों अदाकारों ने अपने किरदारों के जज्बात को बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर जज्बाती मंजर भी अदाकारी ज़्यादा नुमाया महसूस होते हैं, जबकि रोमानी सीन्स में दोनों की केमिस्ट्री कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाती है। फिल्म में कॉमेडी और हल्के फुल्के लम्हात भी शामिल है जो संजीदा और जज्बाती मंजर के दरमियान एक अच्छा तवज़ुन पैदा करते हैं। कुछ सीन नाज़रीन को मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं जबकि कुछ लम्हात जज्बाती भी कर देते हैं। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो ये फिल्म के रोमानू माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। ख़ास तौर पर मोहब्बत से ताल्लुक़ मंजर में म्यूज़िक जज्बात को नुमाया करने में मदद देता है, लेकिन ज़ोर में कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। बाज़ मकामात पर कहानी की रफ्तार थोड़ी महसूस होती है और कुछ वाक़यात काफ़ी अंदाज़ रफ्त लगने के काबिल। अगर स्क्रिप्ट की मज़ीद मजबूत और कुछ किरदारों को मज़ीद गहराई दी जाती तो फ़िल्म का असर बेहतर हो सकता था। इसके बावजूद फिल्म इन लोगों के लिए एक अच्छी तफरीह साबित हो सकती है जो सादा लुमानी कहानी, जज्बाती मंजर और मोहब्बत पर मबनी फिल्में पसंद करते हैं। हमें ये पैगाम दे दे कि मोहब्बत चीना लव स्टोरी खूबसूरत लम्हात का नाम नहीं बल्कि एतमाद, समझदारी और एक दूसरे के एहसास को एक कदर करने भी चाहिए, कदर करने का भी नाम भी है। मजमूई तौर पर एक हल्की फुल्की जज्बाती रोमानी फिल्म के जिसमें मोहब्बत के साथ साथ रिश्तों की पेचीदगी को भी दिखाने की कोशिश की गई है। मेरी तरफ से इसको मैं 10 में से 7.25 मिलेंगे। अगर आप चीनियल लैम स्टोरी देखें तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फ़िल्म की अदाकारी और दो रोमानी सीन्स कैसे लगे, और साथ ही साथ इसके मज़ीद इसके बारे में बात करने वाले इसके डायरेक्टर के बारे में बात की जाए वो है रवि नबूरी जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। अगर दोस्तों इसके राइटर की बात की जाए वो है सई रिजेश जो इस मूवी के राइटर है जिसने इस मूवी को लिखा है। अगर दोस्तों इसके प्रोड्यूसर पर बात की जाए वो है सरी विनिशा कुमार नधु एंड द सई रंजेश। अगर दोस्तों इसके स्टारिंग कौन है वो है किरण अभिराम एंड द सरी गोरी पिया जो इस मूवी के स्टारिंग हैं। जो कास्ट पर बात करते हैं वो ये दोनों हैं हीरो हैं। अगर दोस्तों इसके म्यूज़िक पर बात की जाए वो है मानी शर्मा जो इस मूवी के म्यूज़िक पर गाने गाता है। अगर दोस्तों इसके रिलीज डेट पर बात की जाए वो है 24 जुलाई 2026 को ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। अगर दोस्तों इसके रनिंग टाइम की बात की जाए 179
मिनट की टोटल मूवी है। कंट्री की बात की जाए वो है इंडिया। अगर दोस्तों इसके लैंग्वेज पर बात की जाए, इस मूवी को किस ज़बान में बनाया गया है, लैंग्वेज में बनाया, इस मूवी को तेलुगु में बनाया गया है। तो इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़ यानी बॉक्स ऑफिस 60 करोड़ यानी अभी अभी बहुत ज़्यादा ये मुनाफे पर चल रही है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ। वेलकम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है चेन्नई लव स्टोरी। ये साउथ इंडियन की बेस्ट मूवी है जिसमें मोहब्बत, जज्बात भी है, रिश्तों में ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के एक सादा लेकिन दिलचस्प अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे नौजवान के गिर्द घूमती है जो अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की तलाश में है। हालात ऐसे ही है, एक ऐसी लड़की से मिलाते हैं जो बज़ाहिर इनसे काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। शुरू में दोनों के दरमियान इख्तलाफात और छोटी छोटी नोक चोक देखने को मिलती है, लेकिन वक्त के साथ यही ताल्लुक मोहब्बत में बदलने लगता है। फिल्म का खूबसूरत पहलू यह है कि मोहब्बत को सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि किरदारों के जज्बात, उनके ख्वाब, उनके मुस्तकबिल के फैसलों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है। दोनों मरकजी किरदार एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिश्तों के रास्ते में कई मुश्किलात और गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ते नाज़रीन को एहसास होता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे के करीब आने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने और करी कुर्बानी देने का नाम भी है। मरकजी किरदारों की अदाकारी फिल्म का अहम हिस्सा है। दोनों अदाकारों ने अपने किरदारों के जज्बात को बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर जज्बाती मंजर भी अदाकारी ज़्यादा नुमाया महसूस होते हैं, जबकि रोमानी सीन्स में दोनों की केमिस्ट्री कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाती है। फिल्म में कॉमेडी और हल्के फुल्के लम्हात भी शामिल है जो संजीदा और जज्बाती मंजर के दरमियान एक अच्छा तवज़ुन पैदा करते हैं। कुछ सीन नाज़रीन को मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं, जबकि कुछ लम्हात जज्बाती भी कर देते हैं। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो ये फिल्म के रोमानू माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। ख़ास तौर पर मोहब्बत से ताल्लुक़ मंजर में म्यूज़िक जज्बात को नुमाया करने में मदद देता है, लेकिन ज़ोर में कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। बाज़ मकामात पर कहानी की रफ्तार थोड़ी महसूस होती है और कुछ वाक़यात काफ़ी अंदाज़ रफ्त लगने के काबिल। अगर स्क्रिप्ट की मज़ीद मजबूत और कुछ किरदारों को मज़ीद गहराई दी जाती तो फ़िल्म का असर बेहतर हो सकता था। इसके बावजूद फिल्म इन लोगों के लिए एक अच्छी तफरीह साबित हो सकती है जो सादा लुमानी कहानी, जज्बाती मंजर और मोहब्बत पर मबनी फिल्में पसंद करते हैं। हमें ये पैगाम दे दे कि मोहब्बत चीना लव स्टोरी खूबसूरत लम्हात का नाम नहीं, बल्कि एतमाद, समझदारी और एक दूसरे के एहसास को एक कदर करने का भी नाम भी है। मजमूई तौर पर एक हल्की फुल्की जज्बाती रोमानी फिल्म के जिसमें मोहब्बत के साथ साथ रिश्तों की पेचीदगी को भी दिखाने की कोशिश की गई है। मेरी तरफ से इसको मैं 10 में से 7.25 मिलेंगे। अगर आप चीनियल लैम्प स्टोरी देखें तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फ़िल्म की अदाकारी और दो रोमानी सीन्स कैसे लगे, और साथ ही साथ इसके मज़ीद इसके बारे में बात करने वाले इसके डायरेक्टर के बारे में बात की जाए वो है रवि नबूरी, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। अगर दोस्तों इसके राइटर की बात की जाए वो है सई रिजेश, जो इस मूवी के राइटर है जिसने इस मूवी को लिखा है। अगर दोस्तों इसके प्रोड्यूसर पर बात की जाए वो है सरी विनिशा कुमार नधु एंड द सई राजेश। अगर दोस्तों इसके स्टारिंग कौन है वो है किरण अभिराम एंड द सरी गोरी पिया, जो इस मूवी के स्टारिंग हैं। जो कास्ट पर बात करते हैं वो ये दोनों हैं हीरो हैं। अगर दोस्तों इसके म्यूज़िक पर बात की जाए वो है मानी शर्मा, जो इस मूवी के म्यूज़िक पर गाने गाता है। अगर दोस्तों इसके रिलीज डेट पर बात की जाए वो है 24 जुलाई 2026 को ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। अगर दोस्तों इसकी रनिंग टाइम की बात की जाए 179 मिनट की टोटल मूवी है। कंट्री की बात की जाए वो है इंडिया। अगर दोस्तों इसके लैंग्वेज पर बात की जाए, इस मूवी को किस ज़बान में बनाया गया है, लैंग्वेज में बनाया, इस मूवी को तेलुगु में बनाया गया है। तो इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़ यानी बॉक्स ऑफिस 60 करोड़ यानी अभी अभी बहुत ज़्यादा ये मुनाफे पर चल रही है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ।
वेलकम वीवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम है चेन्नई लव स्टोरी। ये साउथ इंडियन की बेस्ट मूवी है जिसमें मोहब्बत जज्बात भी है, रिश्तों में ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के एक सादा लेकिन दिलचस्प अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे नौजवान के गिर्द घूमती है जो अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की तलाश में है। हालात ऐसे ही है, एक ऐसी लड़की से मिलाते हैं जो बज़ाहिर इनसे काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। शुरू में दोनों के दरमियान इख्तलाफात और छोटी-छोटी नोक-झोंक देखने को मिलती है, लेकिन वक्त के साथ यही ताल्लुक मोहब्बत में बदलने लगता है। फिल्म का खूबसूरत पहलू यह है कि मोहब्बत को सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि किरदारों के जज्बात, उनके ख्वाब, उनके मुस्तकबिल के फैसलों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है। दोनों मरकजी किरदार एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिश्तों के रास्ते में कई मुश्किलात और गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ते नाज़रीन को एहसास होता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे के करीब आने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने और करी कुर्बानी देने का नाम भी है। मरकजी किरदारों की अदाकारी फिल्म का अहम हिस्सा है। दोनों अदाकारों ने अपने किरदारों के जज्बात को बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर जज्बाती मंजर भी अदाकारी ज़्यादा नुमाया महसूस होते हैं, जबकि रोमानी सीन्स में दोनों की केमिस्ट्री कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाती है। फिल्म में कॉमेडी और हल्के-फुल्के लम्हात भी शामिल हैं जो संजीदा और जज्बाती मंजर के दरमियान एक अच्छा तवज़ुन पैदा करते हैं। कुछ सीन नाज़रीन को मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं, जबकि कुछ लम्हात जज्बाती भी कर देते हैं। म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो ये फिल्म के रोमानू माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। ख़ास तौर पर मोहब्बत से ताल्लुक़ मंजर में म्यूज़िक जज्बात को नुमाया करने में मदद देता है। लेकिन ज़ोर में कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। बाज़ मकामात पर कहानी की रफ्तार थोड़ी महसूस होती है और कुछ वाक़यात काफ़ी अंदाज़ रफ्त लगने के काबिल हैं। अगर स्क्रिप्ट की मज़ीद मज़बूत और कुछ किरदारों को मज़ीद गहराई दी जाती तो फ़िल्म का असर बेहतर हो सकता था। इसके बावजूद फ़िल्म इन लोगों के लिए एक अच्छी तफरीह साबित हो सकती है जो सादा लुमानी कहानियाँ, जज्बाती मंज़र और मोहब्बत पर मबनी फ़िल्में पसंद करते हैं। हमें ये पैगाम देते हैं कि मोहब्बत जीना लव स्टोरी खूबसूरत लम्हात का नाम नहीं, बल्कि एतमाद, समझदारी और एक दूसरे के एहसास को एक कदर करने का भी नाम भी है। मजमूई तौर पर एक हल्की-फुल्की जज्बाती रोमानी फ़िल्म के जिसमें मोहब्बत के साथ-साथ रिश्तों की पेचीदगियों को भी दिखाने की कोशिश की गई है। मेरी तरफ से इसको मैं 10 में से 7 नंबर मिलेंगे। अगर आप चीनियल लैम्प स्टोरी देखें तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फ़िल्म की अदाकारी और दो रोमानी सीन्स कैसे लगे, और साथ ही साथ इसके मज़ीद इसके बारे में बात करने वाले इसके डायरेक्टर के बारे में बात की जाए, वो है रवि नबूरी जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। अगर दोस्तों इसके राइटर की बात की जाए, वो है सई रिजेश जो इस मूवी के राइटर है, जिसने इस मूवी को लिखा है। अगर दोस्तों इसके प्रोड्यूसर पर बात की जाए, वो है सरी विनिशा कुमार नधु एंड द सई राजेश। अगर दोस्तों इसके स्टारिंग कौन है, वो है किरण अभिराम एंड द सरी गोरी पिया जो इस मूवी के स्टारिंग हैं। जो कास्ट पर बात करते हैं वो ये दोनों हैं, हीरो हैं। अगर दोस्तों इसके म्यूज़िक पर बात की जाए, वो है मानी शर्मा जो इस मूवी के म्यूज़िक पर गाने गाता है। अगर दोस्तों इसके रिलीज़ डेट पर बात की जाए, वो है 24 जुलाई 2026 को ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। अगर दोस्तों इसकी रनिंग टाइम की बात की जाए, 179 मिनट की टोटल मूवी है। कंट्री की बात की जाए, वो है इंडिया। अगर दोस्तों इसके लैंग्वेज पर बात की जाए, इस मूवी को किस ज़बान में बनाया गया है, लैंग्वेज में बनाया, इस मूवी को तेलुगु में बनाया गया है। तो इस मूवी का टोटल बजट 15 करोड़ यानी बॉक्स ऑफिस 60 करोड़, यानी अभी अभी बहुत ज़्यादा ये मुनाफे पर चल रही है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ।